A very warm welcome to each one of you to today's highly anticipated webinar on RERA, the game changer for chartered accountants, creating new professionals for CAs, organized by Central India Regional Council of ICAI. I am CA Manvi Jain, your host and moderator for the session, joining you from Jaipur. It is a truly privilege to be a part of this enlightening session that initiates the exploring of RERA, Real Estate Regulation and Development Act 2016, as it is transforming the landscapes of our profession. Before we begin, let me take a moment to express heartfelt gratitude to the driving force of behind this initiative. C. Ankur Kumar Gupta, sir, Chairman CIRC of ICI. C. Jayendra K. Tiwari, sir, Secretary CIRC ICI. C. Dinesh Agarwal, sir, Vice Chairman CIRC ICI. C. Ankush Jain, sir, Treasurer CIRC ICI. C. Ankur Goyal, sir, Chairman CIRC ICI, and the entire team for continuously fostering knowledge and innovation in our profession. The theme of today's webinar is both timely and vital. With real estate being the largest sectors in our country, the implementation of RERA has introduced framework for transparency, accountability, and regulation authorities, opening up new dimensions for professional opportunists like chartered accountants. From certification requirements to compliance audits to financial reportings under RERA, the scope of CA is growing vast and expanding too. It is our responsibility to understand the shift and prepare ourselves to add value to this regulatory space. To help us navigate the opportunities and challenges, we are joined today by our exceptional speaker, CA Anand Jain sir, Regional Council Member, CIRC ICI. With his depth of knowledge and practical experience in the subject, I am confident that his insights will empower us all. Before we begin, just a few guidelines. Please keep your microphones muted during the session. You are welcome to post your queries also here. Let us begin without any further delay into today's session and explore how RERA is not just a legislation, it is a game changer for chartered accountants. Over to you, Anand Jain, sir. I think, Manviji, you have forgot to ask the Chairman CIRC for his welcome remarks. So before starting, I would request Chairman sir to please give opening remarks. Yeah, okay. Sorry. Chairman, sir, first of all, please have some remarks. I'm sorry for that. Not an issue. No. ओके कोई नो प्रॉब्लम मानवी थैंक यू आनंद हाँ, आज का जो सेशन है जो हमारी कड़ी है एक थॉट हमने डेवलप किया है सीआईआरसी में सभी पूरी टीम ने मिलके कि वीक में हम एक या दो सेशन ऐसे हैं जो वेबिनार के रूप में हम लें और ऐसे सेशन लें जो मेंबर्स को नए जो अपॉर्चुनिटी निकली है मार्केट में आ रही है उनके बारे में अवेयर करवा पाए। तो उसी की कड़ी में आज हमने रेरा का रखा है। उसका पर्पज यही है कि बहुत छोटी छोटी जगह पे अभी नई बिल्डिंगें बन रही है, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें ना मतलब सिटी से आउटसाइड में जाके कर रही है। तो इस रेरा का करने का पर्पज यही है कि सीए इसमें नई अपॉर्चुनिटी निकाले, कैसे इसमें कनेक्ट हो सके, क्या क्या रूल है। ये स्टेट टू स्टेट गवर्न करता है कि सब अपने अपने स्टेटों का अपना अपना रेरा एक्ट बना हुआ है और एक सेंट्रल रेरा एक्ट बना हुआ है। उसी को कॉपी करके उसी को ध्यान में रखते हुए सब स्टेटों ने अपने अपने रेरा एक्ट बनाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मेन थीम है रेरा की उसमें हमारी सीए प्रोफेशन में क्या क्या चीजें निकल पाए। और मैं आनंद से भी यही कहूंगा, हमारे जो मेरा कलीग्स है आरसीएम में रीजनल काउंसिल में, कि वो इन चीजों पे फोकस करे ज्यादा कि सीए अपॉर्चुनिटी कैसे निकाले इसमें। जो आपका टॉपिक है गेम चेंज एक रेरा के लिए कि नए जो सीए आए हैं बच्चे, नए मेंबर जो बनते हैं वो रेरा में कैसे अपना फ्यूचर देख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे है, एएस उस पर कैसे अप्लीकेबल होगा, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है तो वो किस बेस पे देना होता है। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जो बेसिक का ओवरऑल हमारे अब जैसे अपने पूरे रीजन में 7 स्टेट है तो उनको ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर चीजें समझाएं जिससे क्या है कि मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकले। थैंक यू। थैंक यू आनंद। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत कुछ जानने को भी मिला अभी। जैसा आपने कहा कि नए सीएस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगा, मैं बिल्कुल मानती हूँ आज के सेशन के बाद हमें और बहुत नॉलेज आएगी रेरा के बारे में और कैसे हम और कंप्लायंस कर सकते हैं इसको लेके। आनंद जैन सर, क्या हम शुरू कर सकते हैं?
Yes, madam, we can start. Okay, sir. Over to you now. So, good afternoon, everyone. First of all, thanks to my regional council colleague and the chairman of our Central India Regional Council, C. Ankur Kumar Gupta sir, and Secretary Jayendra Tiwari ji, for giving me this opportunity to have an interaction with all the members of Central India Regional Council on this very important topic, RERA, a game changer, charting new professional territory for chartered accountants. And obviously, the moderator of today's session, Manvi Jain, who has taken time from her busy schedule to moderate this session and contribute in the activities of CIRC. So, as told by our chairman, अंकुर सर और मेरी बात हो रही थी कि कुछ नई चीजों पे हम स्टार्ट करें, और उसी लाइन में एक रेरा जो कि नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के रूप में इमर्ज हो रहा है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रोल रेरा के अंदर बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर हम किस तरह से हमारे मेंबर्स को एडुकेट कर सकते हैं। एंड चेयरमैन सर का जो कंसर्न था वो ये था कि कई छोटी जगह होती है, छोटी ब्रांचेस हैं, छोटे स्टडी सर्कल्स हैं, जहां पर लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि किस तरह से ये एक्ट वर्क कर रहा है या क्या प्रोविजन है, क्योंकि इतने नए एरिया के ऊपर सारे मेंबर्स के लिए सेमिनार छोटी छोटी जगह पर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो कंटिन्यूइंग विद द सेम लाइन, अंकुर सर ने थॉट लिया कि एक रेरा के ऊपर हम वेबिनार करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव चेयरमैन सर। आप जो हमारे मेंबर्स जो छोटी छोटी जगह पर हैं, उनका ध्यान रखकर जो वेबिनार्स कर रहे हैं, और हर हफ्ते 2 या 3 वेबिनार हम लोग कर रहे हैं। So thank you so much for all your dedication and commitment towards the profession. Coming to the topic, रेरा। सो हम सबको पता है कि रेरा जो है हमारे देश में लागू हो चुका है, और रेरा एक्ट जब से लागू हुआ है तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल इस एक्ट के अंदर कैसे है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और एज ए होम बायर या एज ए कंसल्टेंट टू योर क्लाइंट्स, हमको कई बार ऐसा होता है कि रियल एस्टेट रिलेटेड भी क्वेरीज आती है, तो हम उसका एक बेसिक आंसर किस तरह से दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। सो आज का जो वेबिनार है, हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रोविजंस, ये एक्ट के बेसिक प्रोविजंस क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, धंधा हम लोग कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, कैसे हम काम निकाल सकते हैं, क्या कंप्लायंस होते हैं जो एज अ प्रमोटर करना होते हैं, जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो एजेंट को करना होते हैं, हाउ वी कैन रजिस्टर अ प्रोजेक्ट, हाउ वी कैन रजिस्टर सम एजेंट और ब्रोकर, और सीए सर्टिफिकेट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम किसी भी बिल्डर क्लाइंट का काम कर रहे हैं और वो रेरा रजिस्टर्ड है, तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट एज अ सीए उनको देना होता है। तो हाउ वी कैन गिव दैट सर्टिफिकेट, हम किस तरह से किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल एजेंडा ऑफ टुडेज वेबिनार। सबसे पहले हम बेसिक ओवरव्यू की बात करते हैं कि इस एक्ट का बेसिक ओवरव्यू क्या है। सो राज्यसभा जो है वो पास हुआ था, लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पास हुआ, 26 मार्च 2016 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली, और गजट नोटिफिकेशन 26 मार्च 2016 को आया। रेरा एक्ट जो है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। दैट मीन्स कि एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी डेफिनेशन दी हुई है किस तरह से करना है, आत्मा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है, और स्टेट ने अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए हैं कि किस तरह से वो रेगुलेट करना चाहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। सो जैसा कि आज इस वेबिनार में हमारे पास सारे स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली हम इस एक्ट की आत्मा की बात करेंगे कि ये एक्ट की आत्मा बोलती क्या है, क्या भावना है इस एक्ट को लाने के पीछे, और जो रूल्स भी बने हुए हैं कहीं ना कहीं उस भावना को पूर्ण करने के लिए, उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए हर स्टेट ने अपने अपने रूल बनाए हैं। एक्ट जो है वो 1 मई 2016 से एप्लीकेबल हुआ है। मध्य प्रदेश में भी एप्लीकेबल उसी समय हुआ, काफी सारे स्टेट्स में हुआ है। अब जो
हम आज बात करेंगे, मैं कई जगह पर हो सकता है मध्य प्रदेश के रिलेटेड प्रोविजंस बताऊं, बट आई विल ट्राई यूपी के भी करूंगा। बट अगर कहीं पर कुछ कॉन्ट्रावेंशन होता है या कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप अपने स्टेट के स्पेसिफिक रूल जब देखेंगे सो यू विल हैव अ क्लैरिटी। बट मोटा मोटी जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के वो डेफिनेटली आई विल गोइंग टू कवर, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे मेंबर्स को मिले कि प्रोविजंस है क्या। सो इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी भाई? 2016 में, फ्रॉम 2016 दिस एक्ट हैज केम इनटू इफेक्ट, बट बिफोर दैट आल्सो सिंस इंडिपेंडेंस इन आवर कंट्री देयर वर सेवरल लॉज जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करते थे। हो सकता है अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉ एप्लीकेबल होते हो, बट देयर वर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट। तो इसके पीछे छोटी छोटी सी कहानियां हैं। अब एक रियल एस्टेट ब्रोकर ने कस्टमर को पकड़ा। अंकुर जी एक कस्टमर हैं और वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर के पास गए कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदना है। ब्रोकर उन्हें एक बिल्डर के पास ले गया और बिल्डर ने अपनी प्रॉपर्टी का बढ़िया मैप दिखाया, पूरा प्लान शो किया, और बेस्ड ऑन दैट प्लान अंकुर भाई ने वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया। जब प्लान डिस्कस हो रहा था तो डेवलपर ने बिल्डर ने ये बोला कि ये जो बिल्डिंग है ये अगले 4 सालों में बन के तैयार हो जाएगी और आपको 3-3 महीने में पेमेंट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे देना है। एजेंट के सामने ये बात हुई, सारी चीजें हुई। वो बिल्डिंग 4 साल बाद नहीं बन पाई। अंकुर जी चक्कर काटते रहे, फिर 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। देन फिर एक सिविल सूट फाइल हुआ, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे उनके बेसिस पे हमने सूट फाइल किया। फिर डिले चलता रहा और एट लास्ट अंकुर जी परेशान होकर बिल्डर के पास गए, दोनों ने आपस में निगोसिएशन किया और जो भी लेन देन करना था चीजें कंक्लूड हुई। कहने का मतलब यह है कि जब ये एक्ट नहीं आया था तो उसके पहले ये सारी स्थितियां थी, बट नाउ आफ्टर दिस एक्ट हैज केम इनटू इफेक्ट ये सारी चीजें हट चुकी है। ये एक्ट की जो सबसे बड़ी मैं बोलूंगा रिक्वायरमेंट थी वो ये है टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट में चाहे एजेंट हो, चाहे अलॉटी हो, या चाहे प्रमोटर हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, हर चीज के लिए एक्ट के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस एक्ट की भावना है दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटीज। अगर कोई अलॉटी, अलॉटी मीन जो बाय कर रहा है, सो अगर कोई अलॉटी कोई प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो उसका इंटरेस्ट सबसे पहले सेव होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है हमारे देश में कि घर बनाने के लिए पूंजी लगा देता है, तो जब वो अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगा रहा है तो उसका इंटरेस्ट कैसे इस एक्ट के माध्यम से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द कोर इंटेंट ऑफ दिस एक्ट। एंड टू इन्फ्यूज ट्रांसपेरेंसी, ये एक्ट जो है ट्रांसपेरेंसी लाता है, क्योंकि एवरीथिंग एवरी डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ द रेरा। तो रेरा के पोर्टल से जब हम सारी जानकारी ले सकते हैं, वहां हम सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली टू रिड्यूस फ्रॉड्स एंड डिलेस। पीछे में जब ये एक्ट नहीं आया था तो उसके पहले ये प्रॉब्लम आती थी कि फ्रॉड हो गया, बिल्डर ने एडवांस पैसा ले लिया और वो चला गया, रन अवे हो गया, प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर रहा है, या उस पैसे को कहीं और प्रोजेक्ट में लगा दिया, वहां फिर नई बुकिंग्स ले ली, दोनों प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुए। एंड डिलेज डिलेज एंड डिलेज, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सो टू रिमूव ऑल दिस इश्यूज, फ्रॉड नहीं हो, डिले नहीं हो, ये एक्ट लाया। अब गवर्नमेंट चाहती तो स्टेट के भी अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती कि आप अपना एक्ट स्पेसिफिक ले आओ, बट टू हैव अ प्रोफेशनलिज्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दिस एक्ट थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में एक जैसा एक्ट एप्लीकेबल हो, उस भावना को लागू करने के लिए जो है ये सेंट्रल गवर्नड एक्ट लाया गया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। और पूरे देश भर में एक्ट जो है वो सभी स्टेट में एक जैसा है, केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं दैट आर डिफरेंट, जस्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू दी प्रमोटर्स, बिल्डर्स, या अथॉरिटी किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन चाहती है उसके ऊपर। imposing responsibilities, accountability and responsibility, दोनों चीजें इस एक्ट से स्टैब्लिश होती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म,
पूरे देश में रेरा अथॉरिटी से एक रेगुलरिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि जब तक आपके पास सिंगल विंडो अवेलेबल नहीं है कि कहाँ आपको जाना है, किस तरह से काम होगा, फ्रॉड है तो आप रेरा में कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे रेरा कोर्ट इसको डील करेगा। सो फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड जो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रमोट गुड गवर्नेंस थ्रू आउट द कंट्री। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट, ये एक्ट लाया गया। अब सबसे पहले जो मुझे लगता है हमें हमारे काम की बात करनी चाहिए कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट आर दी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर अस। आप एक चीज समझिए कि ये एक्ट 2016 में आया है, और एक्ट आने के पहले इस तरह के कोई प्रोविजंस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सो इट इज अ न्यू एक्ट and that gives a level playing field for all the chartered accountant में practice में आए हैं। This act provide them a good opportunity to develop their practice। अब किस तरह का हम यहाँ काम कर सकते हैं? So first and foremost important thing is प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन या एजेंट का रजिस्ट्रेशन। आज कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले वो ये बोलता है कि सर मुझे एक प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है, या हो सकता है कोई ब्रोकर आता है वो बोलता है मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, या आप किसी का आईटीआर फाइल कर रहे थे पहले एंड यू हैव चेक द आईटीआर, इसमें कमीशन इनकम दिखाया हुआ था, यू हैव, मैंने कुछ प्रॉपर्टी में कमीशन का ब्रोकरेज का काम किया था, देन यू हैव चेक्ड अगेन कि आपका रेरा है या नहीं। क्लाइंट ने बोला नहीं मेरा रेरा नहीं है, सो दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी कि आप अपने क्लाइंट को एज ए एजेंट रेरा में रजिस्टर करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन जो है इट इज अ टीडीएस वर्क, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स, लेंथी डॉक्यूमेंट्स एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको बनाना होते हैं। एंड एक मिथ है कि रेरा जो है इट इज रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टीज, लीगल बहुत सारा काम इसके अंदर रहता होगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, लीगल वर्क से ज्यादा इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डॉक्यूमेंट को पढ़ने की समझ हम में होती है वो उतनी अच्छी हो सकता है एज ए एडवोकेट। फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, इनकम टैक्स का एंगल है, जीएसटी का एंगल है, तो हमारे जो एडवोकेट ब्रदर्स है वो नहीं कर पाए। सो दिस इज अ नीश एरिया फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज सर्टिफिकेशन वर्क। एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि रेरा के अंदर हर प्रमोटर मतलब जो भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर कर रहा है उसको हर 3 महीने में अपना एक क्वार्टरली कंप्लायंस करना होता है रेरा के साथ में। तो उस क्वार्टरली कंप्लायंस में एक सर्टिफिकेट लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट। साथ में ही हम अभी आगे देखेंगे जब भी प्रोजेक्ट से फंड का विड्रॉल होता है तो उसमें भी एक सीए का सर्टिफिकेट लगता है। सो ये एक्ट जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशन वर्क के लिए एंड क्वार्टरली कंप्लायंस ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड हैंडसम अमाउंट जो है इस काम के लिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन बिल टू द क्लाइंट, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी एक टीडीएस वर्क है, प्लस क्वार्टरली कंप्लायंस में हमको सारा कुछ चेक करना पड़ता है। एंड एज वी ऑल आर अवेयर ऑडिट ट्रेल भी आ चुका है, तो कंपनीज क्लाइंट के केस में उनका 3 महीने का पूरा प्लानिंग करना, उनके 3 महीने के डॉक्यूमेंट चेक करना, उनकी ग्रोथ चेक करना एंड बेस्ड ऑन दैट सर्टिफिकेट्स रेडी करना, इट इज अ वेरी टीडियस जॉब एंड इजी टास्क फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देन वी कम्स टू रेरा ऑडिट। अभी रेरा ऑडिट जो है इट इज ऑल्सो मेड प्रोविजन इन द एक्ट, और कई स्टेट्स ने रेरा ऑडिट जो है वो शुरू करवा दिए हैं, रेरा ऑडिट के लिए उनके ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट दे दिए हैं। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम रेरा ऑडिट भी करके अपनी सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इन अ बिग सिटीज लाइक बैंगलोर, मुंबई, रेरा ऑडिट के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फीस इज बीइंग चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट। सो अगर आप छोटी जगह पर भी बैठे हैं और किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन चार्ज 25,000, 40,000, 50,000 रुपीज फॉर दिस रेरा ऑडिट वर्क। देन कम्स रेरा एजेंट एनुअल रिटर्न। जो एजेंट का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको एनुअली रेरा को एक रिटर्न सबमिट करना होता है जिसमें अपने पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन्स को वो रेरा को सबमिट करते हैं। तो एनुअल रिटर्न ऑफ एजेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया जहां हम जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं
उसी तरह से एनुअल रिटर्न ऑफ एजेंट भी फाइल कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एजेंट का रिटर्न अगर नहीं फाइल हुआ है या क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं तो उसमें पेनल्टी है। तो क्लाइंट हैज टू मेक कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजन। ऐसा नहीं कर सकते कि रजिस्ट्रेशन लिया और सो गए। दे हैव टू सबमिट एनुअल रिटर्न विद द रेरा अथॉरिटीज। सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, अगर कोई आपके पास एज कस्टमर आता है जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है एंड ही इज एग्रीव्ड विद द बिल्डर या प्रमोटर से उसको कोई कंप्लेंट है, सो दैट कंप्लेंट कैन आल्सो बी फाइल्ड विद द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये भी एक बहुत अच्छा एरिया है। रिप्रेजेंटेशन सर्विस बिफोर द अथॉरिटी, रेरा ट्रिब्यूनल हो या रेरा अथॉरिटीज जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है या रेगुलर कंप्लायंस करती है, तो उनके सामने रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अनदर एरिया इज प्रोजेक्ट ड्यू डिलिजेंस फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स, या टेक ओवर हो रहा है पूरे प्रोजेक्ट का तो अपने बिल्डर क्लाइंट को हम सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सीए कलीग जो इंदौर को बिलोंग करता है एंड नाउ ही हैज सेटल्ड इन पुणे। अब वो सीए साहब जो हमारे पुणे में है वो जॉब में है और वो ये चाहते हैं कि मैं इंदौर में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। आनंद भाई, आप एक प्रोजेक्ट का ड्यू डिलिजेंस करके मुझे अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करें कि मैं किस प्रोजेक्ट में अपना पैसा डालूं, या आई हैव सिलेक्टेड फ्यू प्रोजेक्ट्स, आप उनका ड्यू डिलिजेंस करके उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करके मुझे सजेस्ट कीजिए। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर एरिया जहां हम ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल क्लाइंट्स को। और अगर कोई प्रोजेक्ट है जो पूरा टेक ओवर हो रहा है, हमारा एक बिल्डर क्लाइंट है जो किसी प्रोजेक्ट को पूरा टेक ओवर कर रहा है, या कोई बिल्डर क्लाइंट एक प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर पा रहा था और हम उस प्रोजेक्ट को किसी और बिल्डर को टेक ओवर करवा रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया जहां एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम अपनी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ में बहुत सारी अलाइड सर्विसेज हैं जो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टैक्स प्लानिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जीएसटी प्लानिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एरिया जहां पर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है तो उसका ड्राफ्टिंग कैसे होना चाहिए, उसमें रेरा के प्रोविजन कैसे डाल सकते हैं, इनकम टैक्स एंगल कैसा रहेगा, जीएसटी एंगल कैसा रहेगा। इफ सम प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड टू स्टॉक इन ट्रेड तो हम उसको अग्रीमेंट में किस तरह से शो करें, या इफ देयर इज अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द लैंड ओनर एंड डेवलपर, सो हाउ वी कैन ड्राफ्ट द एग्रीमेंट टू मेक श्योर दैट जीएसटी कैन नॉट बी लेविड ऑन इट। सो इस तरह के तमाम अलाइड सर्विसेज हैं ड्राफ्टिंग रिलेटेड। अगर बिल्डर जो है वो कस्टमर के साथ अग्रीमेंट कर रहा है तो उस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनाना है तो हम उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या एसोसिएशन ऑफ अलॉटी है तो उसका एरिया बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लिए ओपन होता है, एक नई टेरिटरी खोलता है। और चाहे एक छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, सभी में कंप्लायंस लेवल सिमिलर है, सभी में एक जैसे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो हमारे लिए बहुत एक प्रोसेस सेट करने वाली चीज है कि अगर हमने एक प्रोसेस सेट कर लिया, एक बार हमारा स्ट्रीमलाइन हो गया, तो इन फ्यूचर वी कैन रेंडर दिस सर्विसेज टू ऑल ऑफ आवर क्लाइंट एंड यूजिंग द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में हम कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी यूज करके, एआई यूज करके किस तरह से हमारे पूरे डॉक्यूमेंटेशन को, रिकॉर्ड कीपिंग को, क्लाइंट सर्विसेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशनल, एज अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इस एरिया में भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। हम अपने चैटबॉट्स बना सकते हैं जहां पर हम अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करें इफ दे वांट टू रेंडर some services specifically for real estate sector. So these are all the professional opportunities what a chartered accountant can have from this new area of practice, new territory, the real estate. अगेन हम बातें एक्ट के ऊपर की, ये एक्ट है क्या। सो एक्ट ये मार्च में 26 मार्च को आया। दिस एक्ट एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशियंसी टू सीक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स। दिस एक्ट established the real estate regulatory authority in each state. Mandatory registration of the project is compulsory for the real estate projects. Standardization of sale agreement, speedy dispute resolution mechanism, ये सब हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो देयर आर मोर
4 important pillars of this act, 4 important pillars हैं जो इस एक्ट के हैं. फर्स्ट इज अथॉरिटी, सेकंड इज अलॉटी, थर्ड इज प्रमोटर एंड फोर्थ वन इज एजेंट. अथॉरिटी मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हर स्टेट की अपनी अलग अलग एक अथॉरिटी है. अलॉटी दैट मींस जो कस्टमर है, जो प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं, जो किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपने सपनों का घर खरीद रहे हैं. सो अलॉटीज आर दोज पीपल जो किसी प्रोजेक्ट में अपनी बुकिंग करके प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं. देन कम्स द प्रमोटर्स एंड एजेंट्स. तो प्रमोटर और एजेंट की डेफिनेशन जो है हम आगे स्लाइड्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस पूरे एक्ट के, जिस पर ये पूरा एक्ट टिका हुआ है. सो हु इज द प्रमोटर? Section 2, subsection ZK of the RERA Act provides the definition of the promoter. Promoter is a person who construct or cause to construct an independent building or a building consisting of apartment, or converts an existing buildings or part thereof into the apartments for the purpose of selling all or some of the apartment to the other person. पहला हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जो कि बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको कन्वर्ट करके अपार्टमेंट बना रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टू सम अदर पर्सन. तो ये हुआ कंस्ट्रक्टेड. डेवलपमेंट कर रहा है तो प्रमोटर कहलाएगा. अ पर्सन हु डेवलप्स लैंड इनटू द प्रोजेक्ट. भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो लैंड को प्रोजेक्ट में डेवलप कर रहा है और उसके प्लॉट बना रहा है, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाएगा for the purpose of selling this to the other person or some of the plots to in the said project. तो वो भी प्रमोटर की डेफिनेशन में आता है. एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और पब्लिक बॉडी जो भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एन एपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, या एनी अदर पर्सन हु एक्ट हिमसेल्फ एज अ बिल्डर, कॉलोनाइजर, डेवलपर, real estate developer by any whatever name called. So ये सारे लोग जो है प्रमोटर की डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन Z के में बताए हुए. टू समराइज, अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट लैंड इनटू द प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कवर हो रही है, पब्लिक बॉडीज भी कवर हो रही है, प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज भी कवर हो रही है, कॉलोनाइजर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर बाय एनी अदर नेम, लैंड ओनर एंड POA ऑफ द लैंड ओनर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज लैंड ओनर. मैं मध्य प्रदेश रेरा की यहां पर एक एग्जांपल कोट करूंगा. लैंड ओनर को पहले मध्य प्रदेश रेरा में एज अ प्रमोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता था, बट सिंस लास्ट फ्यू ईयर, जब इनिशियल एक्ट आया था तब नहीं करवाया लैंड ओनर ने एज अ प्रमोटर रजिस्ट्रेशन, बट सिंस लास्ट फ्यू ईयर दिस इज मेड मैंडेटरी फॉलोइंग दिस प्रोविजन दैट लैंड ओनर शुड ऑल्सो गेट रजिस्टर इन द रेरा एज अ को प्रमोटर. तो को प्रमोटर के रूप में लैंड ओनर को भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है. अब फर्ज कीजिए एक लैंड ओनर जो एक किसान आदमी है जिसकी जमीन है और उसने डेवलपर के साथ में एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है एंड ही इज गोइंग टू गेट रजिस्टर एज अ प्रमोटर. सर वो किसान आदमी पूरी तरह से उसके कंसल्टेंट पर डिपेंडेंट होता है. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू दैट लैंड ओनर दैट हाउ this act, this provisions can be complied with. कैसे फिनेंशियली हम सारी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम फाइनेंस प्लान कर सकते हैं, कैसे हम टैक्सेशन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लैंड ओनर के केस में कैपिटल गेन इज अ बिग इशू. और जिस तरह से शहर की सीमा बढ़ती जा रही है तो अर्बन लैंड, रूरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, उनकी डेफिनेशंस में किस तरह से हमको चेक करके हाउ वी कैन कंप्लाई विद द टैक्सेशन प्रोविजन, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. So section 4 of this act says about registration. कौन लेगा रजिस्ट्रेशन? एवरी प्रमोटर मस्ट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. जो प्रमोटर है वो रजिस्ट्रेशन लेगा. प्रमोटर कौन हुआ हमने पिछली स्लाइड में देखा है. रियल एस्टेट अथॉरिटी से प्रमोटर को रजिस्ट्रेशन लेना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस. ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी इनक्लोज्ड along with the application. इसके साथ में एक फॉर्म का एफिडेविट देना होता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देना होते हैं, प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट देना होते हैं, यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, अंडरटेकिंग, इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट हमको देना होते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट, हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग है. फॉर एग्जांपल इफ आई से
छत्तीसगढ़ रेरा जो है वो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट इनिशियल एप्लीकेशन के समय नहीं लेते हैं, एंड देर इज अ प्रोविजन दैट प्रमोटर कैन सबमिट एन एफिडेविट कि 30 दिन में जब रजिस्ट्रेशन आएगा उसके 30 डेज के अंदर हम डेजिग्नेटेड अकाउंट रेरा में अपडेट कर देंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट मध्य प्रदेश रेरा, तो हमारे यहाँ फर्स्ट विंडो में ही डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होती है। व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर कि हर स्टेट का, मैंने जैसा पहले भी बताया कि हर स्टेट का मैकेनिज्म अलग अलग है, भावना सेम है। कोई स्टेट इनिशियल लेवल पे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कुछ स्टेट बाद में मांगते हैं, इस तरह से। बट डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे हमको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। अब ये रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट सेज नो प्रमोटर कैन एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल और ऑफर। एडवर्टाइज नहीं करना है, मार्केट नहीं करना है, बुक नहीं करना है, सेल नहीं करना है, ऑफर नहीं करना है इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इधर अ न्यू प्रोजेक्ट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग द प्रोजेक्ट विथ रेरा। सर बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये कहती है सेक्शन में जो लिखा हुआ है कि प्रमोटर एडवर्टाइज नहीं कर सकता, मार्केट नहीं कर सकता, बुक नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, या ऑफर भी नहीं कर सकता। क्या ऑफर नहीं कर सकता? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो कि न्यू है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। सो लेट्स कम टू दिस न्यू प्रोजेक्ट एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट है जो न्यू प्रोजेक्ट होंगे और कौन से प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होंगे? ऐसे तमाम प्रोजेक्ट जो इस एक्ट के आने के पहले, इस एक्ट के आने के पहले स्टार्ट हो चुके थे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया था, सो दैट ऑल प्रोजेक्ट्स वर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। उनके लिए जब एक्ट आया था तो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन दी गई थी कि आप सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को इस पर्टिकुलर डेडलाइन तक अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ करवाना है। अब जो एक्ट आने के बाद में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दैट ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी कंसीडर्ड एज न्यू प्रोजेक्ट इन एनी प्लानिंग एरिया। अब प्लानिंग एरिया किसको कहेंगे? सो इफ आई सेज प्लानिंग एरिया, फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एरिया इंटायर मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश की राज्य की हम बात करें, सो पूरा मध्य प्रदेश राज्य को प्लानिंग एरिया के अंदर कवर किया हुआ है। तो अगर मध्य प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्डिंग हो, प्लॉट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इस तरह का कुछ भी हो, सो दैट ऑल प्रोजेक्ट्स हैज टू बी रजिस्टर्ड विथ रेरा, and they cannot promote, the promoter cannot advertise, market, book or sell without the registration. अब मान लीजिए प्रोजेक्ट कोई है वो फेजेस में डेवलप हो रहा है। फेजेस मतलब हमारी टीएनसी जो है वो 10 ब्लॉक की हमने सैंक्शन करवाई और इनिशियली हम सिर्फ 2 ही ब्लॉक डेवलप कर रहे हैं, तो ईच फेज हैज टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट एंड हैज टू बी रजिस्टर्ड सेपरेटली। जब हम 10 ब्लॉक में से 2 लेंगे, एंड लाइकवाइज वी हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन सेपरेटली फॉर ईच फेज। अब भैया रजिस्ट्रेशन किन किन को लेना है? सो रेरा एक्ट ने रजिस्ट्रेशन किन को नहीं लेना है उनके बारे में यहां पर बताया। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट सेज if the land is below 500 square meter in all the phases, or number of apartments in all the phases does not exceed 8 units, then registration is not required. सर क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में? जमीन अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम है सारे फेजेस में मिलाकर, या नंबर ऑफ यूनिट जो है सारे फेजेस में, सारे अपार्टमेंट जो है वो 8 से कम है, तो 8 से ज्यादा नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है? सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर हियर। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स, ताकि एक हमको पता भी चलता रहेगा कितने लोग प्रॉपरली ध्यान से सारी चीजों को देख रहे हैं। फर्ज कीजिए कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जहां पे जमीन जो है वो 600 स्क्वायर मीटर है और नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 6 डेवलप हो रही है। सो वेदर दिस रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? अगर 600 स्क्वायर मीटर टोटल जमीन है सारे फेजेस में मिला के और नंबर ऑफ अपार्टमेंट सिर्फ 6 ही डेवलप हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी?
सर यहाँ पर एक्ट की जो डेफिनेशन जो एक्ट में दिया हुआ है वो लिखा हुआ है प्रोविजन में, लैंड इज बिलो 600 स्क्वायर मीटर इन ऑल द फेजेस, then registration is not required, or number of apartment in all the phases does not exceed 8 unit, then also registration is not required। और लिखा हुआ है that means दोनों conditions fulfill होना जरूरी नहीं है, अगर एक condition भी fulfill हो रही है then registration is not required। कुछ स्टेट में इसके ऊपर एम्बिग्विटी है, कई स्टेट बोलते हैं, जैसे राजस्थान में दोनों कंडीशन को बोलते हैं कि फुलफिल होना जरूरी है, ऐसे कई स्टेट के अंदर एम्बिग्विटी है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होगी या एक कंडीशन फुलफिल होगी, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू चेक वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। सो फर्स्ट वन इज लैंड इज बिलो 500 स्क्वायर मीटर इन ऑल द फेजेस, सेकेंड वन इज नंबर ऑफ अपार्टमेंट इन ऑल द फेजेस डज नॉट एक्सीड 8 यूनिट्स। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नो सेल्स और मार्केटिंग हैज टेकन इनटू द प्लेस, अगर हम प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं और सेल या मार्केटिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है। फिर एग्जांपल लेते हैं सर, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूं जहां पर टोटल 100 अपार्टमेंट्स बनने वाले हैं, देयर आर 100 अपार्टमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इन दिस प्रोजेक्ट। अब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है पर अभी हमने मार्केटिंग शुरू नहीं करी है, हमने सेल्स स्टार्ट नहीं किया है, डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, तो क्या रेरा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 100 हम लोग टोटल अपार्टमेंट डेवलप कर रहे हैं जिनमें अभी मार्केटिंग और सेल्स हमने स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया है, तो क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? ओके, few people are saying yes registration is required, some of them are saying no registration is not required। no, सतीश जी लिख रहे हैं नो, विकास जी लिख रहे हैं नो, राहुल जी लिख रहे हैं नहीं नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा आगे बढ़ता है। सो एज पर द प्रोविजंस एज ऑफ नाउ, जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब भी हम सेल या मार्केटिंग करेंगे उसके समय रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं पिछली स्लाइड पर ले जाता हूं फिर से, नो प्रमोटर कैन एडवर्टाइज मार्केट बुक और सेल और ऑफर इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आप एडवर्टाइज मार्केट बुक या सेल नहीं कर सकते। तो अगर हम सेल्स या मार्केट नहीं कर रहे हैं तो टेम्पररीली रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इफ बट इफ वी आर सेलिंग इन द फ्यूचर, जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जब भी हम मार्केट करेंगे तो उस समय इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। भाई एक्ट जब कमेंस हुआ 1 मई 2016 को, जब एक्ट आया उसके पहले ही कोई प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका था तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नहीं, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे, बिकॉज इन सम ऑफ द स्टेट जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए, दे वर नॉट इशूइंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सो रेरा हैज requested them to give the completion certificate, और 30 days का प्रोविजन यहां पर भी एप्लीकेबल होता है, that if the promoter has applied for the completion certificate to the competent authority और 30 दिनों के अंदर competent authority ने completion certificate नहीं जारी किया है या कोई क्वेरी भी नहीं जारी किया है, तो उसको डीम्ड कंप्लीशन माना जाएगा। और दैट डीम्ड कंप्लीशन हम रेरा में जब सबमिट करते हैं तो अगर इस एक्ट के आने के पहले का कंप्लीशन है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। देन रिनोवेशन और रिपेयर और रीडेवलपमेंट विच डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग। अगर कोई रिपेयर या रिनोवेशन वर्क हो रहा है, मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जहां पर 10 अपार्टमेंट होल्डर्स रहते हैं और उसी बिल्डिंग को जो है एक बिल्डर जो
पूरा डिमोलिश करके फिर से नया बना रहा है और उन्हीं लोगों को वापस से देने वाला है। कोई नया फ्रेश सेलिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। तो रेरा की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं होगी। एक क्वेश्चन है चैटबॉट में कमल वालेचा जी का जबलपुर से, इफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बिफोर सेल्स और मार्केटिंग। उनका यह कहना है कि हमने प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया है, और कंप्लीट करने के बाद में हम उसको अब बेचने के लिए बाजार में निकले हैं, हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो रेरा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? यस सर, इन माय ओपिनियन रेरा रजिस्ट्रेशन यहां फिर भी हमको लेने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आ गया है तो नहीं लेना है, ऐसा एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सो इन दैट केस ऑल्सो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोविजन है, लैंड जो है वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है या अपार्टमेंट कम है, ये सारे प्रोविजन जो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। माय क्वेश्चन इज वेदर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल इफ देयर इज नो रजिस्ट्रेशन। यस, एक्ट के प्रोविजन आपके ऊपर फिर भी एप्लीकेबल है, चाहे आप रेरा में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट भी है, इफ देर इज अ ओल्ड प्रोजेक्ट जो रेरा के पहले, रेरा एक्ट नहीं आया था उसके पहले से है, एंड अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बाय सम ऑफ द अलॉटी, तो उस केस में भी रेरा कैन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो भी बिल्डर के ऊपर पेनल्टीज लगेंगी वो रेरा ऑर्डर कर सकते हैं। सो चाहे रेरा से रजिस्ट्रेशन लिया हो या नहीं लिया हो, ऑल द प्रोविजंस ऑफ रेरा हैज टू बी कंप्लाइड बाय द प्रमोटर्स। अब एप्लीकेशन कौन लगाएगा, रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? सो एवरी प्रमोटर शेल मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन सच फॉर्म मैनर सच टाइम कंप्लेंट बाय फॉर्म विद इन प्रिस्क्राइब्ड फीस। हर स्टेट की अलग अलग फीस है। मुझे जो लगता है मध्य प्रदेश रेरा की फीस एज कंपेयर टू अदर स्टेट थोड़ी सी ज्यादा है। टाइम लिमिट भी रजिस्ट्रेशन का मध्य प्रदेश में ज्यादा है। हम दूसरे स्टेट में देखें, समवन वाज टेलिंग राजस्थान में 10-15 दिन में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। महाराष्ट्र वाले बताते हैं कि हमारे यहाँ तो 7 दिन में, 10 दिन में। आई वाज अटेंडिंग वन ऑफ द session at Hyderabad for the leadership. It was a leadership program for the real estate practitioners. तो वहां महारेरा के चेयरमैन आए हुए थे, एंड ही वाज टेलिंग कि धनतेरस के 2 दिन पहले मुझे प्रमोटर फोन करके बोलते हैं कि सर एप्लीकेशन लगाई है और धनतेरस के दिन हमको रजिस्ट्रेशन आप देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको दे दें दिवाली के पहले। सो दिस इज द प्रैक्टिस व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अथॉरिटीज कि प्रमोटर जो है वो जैसे ही एप्लीकेशन लगाए तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन है, बिकॉज अ डिले इन द प्रोजेक्ट कैन हैम्पर ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर 1 साल प्रोजेक्ट का डिले होता है तो 15% के आसपास का कॉस्ट जो है एडिशनल बियर करना पड़ सकता है, ऐसा जनरली ट्रेंड में है। सो प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमोटर एप्लीकेशन लगाएगा इन सच फॉर्म्स एंड फीस एज में भी प्रिस्क्राइब। फॉर्म्स और फीस और इसका जो रेगुलेशन है वो हर स्टेट का अलग अलग है। अभी हम जब आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फॉर्म्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना होते हैं। फीस की हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश रेरा मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ रेरा में देर इज अ कैप कि इसके ऊपर अगर है तो हम नहीं लेंगे, इतना है तो इतनी फीस लेंगे। हाइब्रिड भी है, फीस का स्ट्रक्चर भी कम है। राजस्थान में भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक फीस है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन फीस ऑल ओवर दी अथॉरिटीज। आप अपने स्टेट में, जो भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करते हैं वहां का फीस स्ट्रक्चर एक बार चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। After submission of the online application, all the document form and soft copy in several different provisions है। हार्ड कॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। 30 दिन में रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। अगर 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इट विल बी अ डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अगेन हम बात करते हैं जैसे मध्य प्रदेश रेरा की, तो हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड में है, ऐसी प्रैक्टिस है कि जब भी कोई रियल एस्टेट एजेंट प्रमोटर अपनी एप्लीकेशन लगाता है तो उसके 5-7 दिन के अंदर एक क्वेरी आ जाती है और उसके बाद 2-3 महीने बाद अगली क्वेरी आती है। सो हम जब भी अथॉरिटी से बात करते हैं कि सर इस प्रोजेक्ट की
एप्लीकेशन लगा है, 3 महीना हो गया है और क्वेरी नहीं आई है, सो देर उनका सबमिशन ये रहता है कि हमने विद इन 30 क्वेरी दे दी है, उसका आपने सॉल्यूशन कर दिया, अब हम जब भी नंबर आएगा तब चेक करेंगे। बट टू माय ओपिनियन टाइम फ्रेम और 30 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाकर हमको अथॉरिटीज को रजिस्ट्रेशन बीइंग गुड गवर्नेंस गुड प्रैक्टिस उनको देना चाहिए। एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड ओनली आफ्टर the opportunity of being heard is given to the promoter and with a reason of rejection, authorities को रीजन भी देना पड़ेगा कि किस कारण से वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लेता हूं तो क्या होने वाला है? सो पहले रजिस्ट्रेशन भी ग्रांटेड इफ प्लान्स आर, भाई अगर टीएनसी परमिशन नहीं है या डेवलपमेंट परमिशन नहीं है, सैंक्शंस नहीं है सारे, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रिजेक्ट कर सकती है। एंड नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया तो क्या पेनल्टी होगी? तो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टी अप टू द 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और बोथ एज में बी डिटरमाइंड बाय द रेरा। अगर आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है तो 50 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर, 3 साल तक की जेल भी हो सकती है या दोनों भी हो सकता है। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कई जिले ऐसे हैं, कई छोटी छोटी जगह ऐसी है जहां पर सेल डीड्स हो रही है विदाउट हैविंग द रेरा रजिस्ट्रेशन। आज नहीं तो कल इन सबके ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है बिकॉज रेरा अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर है, जो कॉलोनी सेल्स हैं, उनसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, उनसे डेटा कलेक्ट करना रेरा अथॉरिटीज ने शुरू कर दिया है। और फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्सो रेरा अथॉरिटीज फॉलो अप कर रही है कि आपने जो डेवलपमेंट परमिशन दी थी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए हैं। ऐसा हर जिले के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आपके अगर कोई क्लाइंट हैं जिन्होंने अपनी कॉलोनी डेवलप कर ली है विदाउट हैविंग द रेरा रजिस्ट्रेशन, वो सेल डीड्स भी कर रहे हैं, सो मेक देम अवेयर अबाउट दिस प्रोविजंस, उनको आप ये एक्ट की भी जानकारी दीजिए और बाय दिस यू कैन इंक्रीज योर प्रैक्टिस ऑल्सो और एक कंप्लायंस भी आपके क्लाइंट के पार्ट पर यहां पर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर मान लीजिए आप टैक्स ऑडिट करते हैं तो टैक्स ऑडिट में एक क्लॉज होता है रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर लॉ और रेगुलेशन वाला, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन रिपोर्ट देयर और हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका है या नहीं है या लाइकवाइज। अब जब भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमको एक टाइम फ्रेम देना होता है कि हम प्रोजेक्ट जो है इतने समय में कंप्लीट कर देंगे, या ये रजिस्ट्रेशन जो है प्रोजेक्ट का 1 साल में डेवलपमेंट हो जाएगा, 2 साल में हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर देंगे। सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कोविड आ गया था, सो सारी अथॉरिटीज ने 6 मंथ का जो है एक्सटेंशन दिया था। सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आप चाहे तो मैक्सिमम 1 साल तक प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन ले सकते हैं। 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन का एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। सो वेन एवर यू आर मेकिंग द एप्लीकेशन बिफोर द अथॉरिटीज, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ जनरली प्लॉटेड डेवलपमेंट कॉलोनीज के लिए 3 साल का रजिस्ट्रेशन टाइम देते हैं एंड बिल्डिंग के लिए 5 साल का देते हैं। कोई एक्सेप्शनल केस होता है तो उसमें ज्यादा भी देते हैं, बट दिस इज द बेसिक प्रैक्टिस जो 3 साल और 5 साल का है। सो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम रेरा अथॉरिटी से मांगे ताकि आपको एक्सटेंशन नहीं लेना पड़े, बिकॉज एक्सटेंशन इज ऑल्सो कॉस्टली अफेयर। एक्सटेंशन में भी जब हम लगाते हैं फिर से एप्लीकेशन, सो इट इज नॉट लाइक कि हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन इन्वर्ट करी कि प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दो। वी हैव टू पे द फीस, वी हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स होते हैं, काइस। तो जब भी हम ओरिजिनल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उनसे लें। एंड फिर अगर देर इज अ डिले, स्टिल देर इज अ डिले, सो यू कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन सिर्फ 12 महीने का मिल सकता है मैक्सिमम, आप चाहें तो 3 3 महीने का 4 बार ले लें, 6 महीने का 2 बार ले लें, या 12 महीने का ले लें। एवरी टाइम यू हैव टू पे द फीस। मध्य प्रदेश रहना में तो देयर इज अ पेनल्टी ऑल्सो कि अगर एक्सटेंशन आपने विद इन दैट गिवन टाइम नहीं अप्लाई किया तो यू हैव टू पे एडिशनल फी
for the late application of the extension application. So as I was telling, it is a very costly affair extension लेना, आप इसका बहुत ध्यान रखेंगे. अब हम आते हैं प्रमोटर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या फंक्शंस है दैट प्रमोटर हैज टू फॉलो. अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि प्रमोटर कौन होता है, उसको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है आवश्यक है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिनमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. नाउ वी कम्स टू दी फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर. सो एवरी प्रमोटर हैज टू क्रिएट और अपडेट हिज वेब पेज ऑन द रेरा वेबसाइट. आप कोई भी स्टेट की रेरा वेबसाइट पर जाएंगे, सो यू विल फाइंड कि वहां पर सारे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन दिखाई देते हैं, उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाई देते हैं. रेरा वेबसाइट के ऊपर वेब पेज भी प्रमोटर को अपना शो करना होता है. देन प्रमोटर हैज टू सबमिट क्वार्टरली परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. क्या क्वार्टर के अंदर प्रमोटर ने डीलिंग्स किया हुआ है, कितने टाइप अपार्टमेंट जो है वो बेचे हैं, किसको बेचे हैं, नंबर ऑफ दैट अलॉटी, उनके आधार नंबर, उनके पैन नंबर, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. ताकि कोई भी, फॉर एग्जांपल, एक यूनिट मुझे भी भेज दिया, किसी और को भी भेज दिया, सो वन कैन चेक फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द रेरा कि ये यूनिट किसी और को बेचा हुआ है तो नहीं है. देन कम्स टू द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का स्टेटस वी हैव टू सबमिट ऑन द पोर्टल कि प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, कब जमीन खरीदी थी, कब टीएनसी कराया, कब विकास अनुमति ली, कितने समय में हम डेवलपमेंट कंप्लीट करने वाले हैं. अपडेट लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स टेकन एंड पेंडिंग. जैसे एमपी रेरा के अंदर वी हैव टू सबमिट ऑल दी अप्रूवल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. कुछ स्टेट ऐसे हैं जो पेंडिंग लिस्ट भी अप्रूव करते हैं, लाइक इफ प्रमोटर इज सबमिटिंग दैट दिस परमिशन इज पेंडिंग टू बी received and I have applied for the registration, but before 30 days, within 30 days from the registration I will submit. तो वो उस तरह की जानकारी भी पोर्टल पर अपलोड करना होती है. रिपेयर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो है वो 5 साल के लिए प्रमोटर को देखना पड़ता है. ऑब्टेन सीसी एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रमोटर को लेना होता है. असिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अलॉटी एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. इफ 50% ऑफ द यूनिट्स आर बुक्ड, देन द प्रमोटर हैज टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ द अलॉटीज, रहवासी संघ हम जिसको बोलते हैं. कन्वीनियंस ऑफ टाइटल, जो टाइटल डीड है वो सारी करना है. प्रोवाइड सर्विस टिल एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज इस फॉर्म. जो मेंटेनेंस होता है टाउनशिप का या बिल्डिंग का, वो जब तक एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म नहीं हो जाता तब तक प्रमोटर को करता है. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस. जो भी एडवर्टीजमेंट किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रमोटर. प्लस अगर प्रोजेक्ट इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन है, सो दैट ऑल्सो हैज टू बी कंप्लाइड बाय दी, दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्रमोटर की इंश्योरेंस उनको करवाना है. पेमेंट ऑफ ऑल गोइंग आउटगोइंग कॉस्ट, जो भी लैंड की कॉस्ट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, लोकल टैक्सेस हैं, ये सारे प्रमोटर को ही देना है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई जमीन प्रमोटर ने खरीदी और उस जमीन के ऊपर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट डेवलपमेंट कंप्लीट होने के पहले ही जो जमीन खरीदी थी उसके टाइटल में बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट डिफेक्ट आ गया, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ द प्रमोटर दैट ही इंश्योर्स दैट लैंड कॉस्ट इज बीइंग पेड. उसके म्यूनिसिपल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस सब कुछ पे हो गए. रीपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज लोन एंड इंटरेस्ट विच आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट. अगर प्रोजेक्ट के ऊपर कोई लोन लिया है प्रमोटर ने, सो उसका रीपेमेंट ही हैज टू इंश्योर. अग्रीमेंट जो है वो करना है. एंड सारी डिटेल जो है वो वेब पेज के ऊपर रजिस्ट्रेशन के समय देनी है. एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही हैज टू इशू अलॉटमेंट लेटर टू द अलॉटी. So these all are the functions of the promoter जो as a promoter he has to follow. अब obligation क्या है भाई? ये एक्ट जो है वो कुछ चीजें एज अ ऑब्लिगेशन प्रमोटर के ऊपर डालता है. फंक्शंस जो हुए that he has to complied with and obligation are there. अगर ये नहीं हुआ, so he is obligatory with the regulation, this section, that he has to perform, fulfill the things. So promoter has to mention mandatorily registration on the advertisement. सर एडवर्टीजमेंट जो है आज के जमाने में एक बहुत बड़ी चीज हो चुका है.
आप देखेंगे फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, आप पेपर में देखते हैं आवास मेला लगा हुआ है या इस तरह की चीजें हुई है, या कई कई जगह पर हम लोग देखते हैं कि बिल्डर किसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के पहले साइट पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाता है कि वो किस तरह से डेवलपमेंट करने वाला है, क्या है। दैट ऑल थिंग्स आर इक्विवेलेंट टू द एडवर्टीजमेंट, एंड द प्रमोटर हैज टू मेंशन द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द एडवर्टीजमेंट। सो सर, जैसा हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट करने के पहले लेना है, एंड the promoter has to ensure that each advertisement bears the registration number with the RERA. So this is the obligation of the promoter. If any allottee makes an advance or deposit on the basis of information or advertisement of the notice or any model apartment, and he sustains any loss on the basis of that incorrect information, तो promoter का obligation है कि वो उसको compensate करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटर ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि मैं अपनी टाउनशिप में एक बड़ा क्लब हाउस बनाने वाला हूं, एंड दिस क्लब हाउस विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द अलॉटीज, टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द ऑल द अलॉटीज, एंड बाद में जाकर के वो क्लब हाउस में चार्जेबल सिस्टम कर देते हैं। सो दिस is a false information, and on the basis of this allotee can ask for compensation from the promoter। इस तरह की बहुत सारी चीजें, अगर कोई रोड था, उन्होंने प्रमोटर ने बोला मैं 12 फीट का रोड बनाने वाला हूं, 12 मीटर का रोड बनाने वाला हूं, और बाद में जाकर के वो 12 मीटर का नहीं बना के 9 मीटर का बना दिया, या बोला था हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाया, तो इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो एडवर्टीजमेंट या प्रोस्पेक्टस में है, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर कोई प्रमोटर कोई अलॉटी कोई लॉस सफर होता है या कंप्लेंट करता है, देन इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर टू कंपनसेट दैट। अब कंपनसेशन कितना देना होगा? पूरा इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया है प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन, जो भी अथॉरिटी डिसाइड करती है कि कंपनसेशन ये होना चाहिए, ये तीनों चीजें मिलाकर देना होगा। Then comes section 13 of this act. Section 13 बोलता है that promoter should not take deposit or advance without having the agreement of sale in the prescribed format. कितना एडवांस नहीं ले सकते? Not more than 10% of the cost of apartment or plot as advance, deposit or application fees without entering into the agreement of sale. Agreement of sale होने के पहले हम इस तरह से 10% से ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकते। अगर ज्यादा लेते हैं सो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो उस समय भी देयर आर थिंग्स जो हम चेक कर सकते हैं कि किसी प्रमोटर ने एज अ पार्टनरशिप फर्म, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी अपनी बुक्स में कोई पैसा एडवांस लिया हुआ है, डिपॉजिट लिया हुआ है और अग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किए हुए हैं, सो दिस इज अ वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, and we can pinpoint this violation to the client. Then the promoter has to adhere to the sanction plans। जो भी सैंक्शन प्लान है उनका अदरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों को मैं एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट यहां पर बता रहा हूं। ट्विन टावर जो है नोएडा का, वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अदरेंस टू दी सैंक्शन प्लान्स, व्हाट वाज द स्टोरी कि एक ट्विन टावर के नाम से एक बड़ी दो बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बन रही थी, और लोकल अथॉरिटी ने जो सैंक्शन किया था दोनों बिल्डिंग्स के बीच का गैप, जो डिस्टेंस होना चाहिए था, उसको फुलफिल नहीं हुआ, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ डिसीजन टू डिमोलिश दैट टावर्स। सो इट इज अ वेरी 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 नाइस एग्जांपल ऑफ दिस एक्ट की, जहां पर अथॉरिटी ने जो है अपना काम किया है टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटीज, और अदरेंस जो है सैंक्शन प्लान का प्रमोटर को करना है। सेक्शन 14 यहां पर बोलता है। देन सेक्शन 14 बोलता है नो अल्टरेशन और एडिशन विदाउट प्रीवियस कंसेंट ऑफ द अलॉटीज। भाई अगर आप कोई अल्टरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो आपको अलॉटीज की कंसेंट लेना होगी। कितने अलॉटीज की लेना होगी? 2/3 ऑफ द अलॉटीज की। फॉर एग्जाम्पल, at the time of registration of the project, initial plan was to have a clubhouse,
हमने प्लान बनाया कि हम क्लब हाउस बनाने वाले हैं। देन लेटर ऑन द प्रमोटर हैज डिसाइडेड कि नहीं, क्लब हाउस नहीं, यहां पर एक मंदिर बनेगा, बहुत अच्छा एक भव्य मंदिर हम बनाएंगे। सो वेदर द प्रमोटर हैज टू टेक the permission or consent from the allottees? Please answer in the chat bot. Sir, my question is कि डेवलपमेंट जब इनिशियली हम लोग कर रहे थे तो क्लब हाउस बनाने वाले थे, बाद में वहां पर मंदिर बनाने वाले, तो क्या परमिशन लगेगी? ओके, नाउ द अनदर क्वेश्चन इज, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होने वाला था, 5 मंजिल की बिल्डिंग बनने वाली है, और हर फ्लोर पर 4 बेडरूम के 3-3 फ्लैट बनने वाले थे। नाउ द बिल्डर हैज चेंज्ड द प्लान, और अभी हर फ्लोर के ऊपर 4-4 बेडरूम की जगह 3-3 बेडरूम के 3-3 फ्लैट्स बनेंगे। सो वेदर द परमिशन विल बी रिक्वायर्ड? ओके, जो डेवलपमेंट होने वाला था उसमें स्टेयर केस में माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई बिल्डर करना चाह रहा है, सो इन दैट केस ऑल्सो द परमिशन विल बी रिक्वायर्ड। राइट। मैं प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट जो कर रहा हूं वो प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहा हूं, नाउ आई हैव चेंज्ड माय माइंड, अब मैं रो हाउस बनाकर देने वाला हूं। वेदर परमिशन विल बी रिक्वायर्ड? रो हाउस बनाकर दूंगा, पहले मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट करने वाला था, अब मैं रो हाउस बनाकर देने वाला हूं। सर, मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट करके प्लॉट की सेपरेट रजिस्ट्री करूंगा और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एक सेपरेट एग्रीमेंट करके रो हाउस बना कर दूंगा। क्या पर कंसेंट लगेगी सबकी? सर, लास्ट वाले केस में नहीं लगेगी, बिकॉज हम कोई प्लान्स में चेंज नहीं करवा रहे हैं, हमारा प्लान जो अप्रूव्ड है वो प्लॉटेड डेवलपमेंट का ही अप्रूव्ड है। सिर्फ एज एडिशनल फैसिलिटी हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उनको अपना घर बना कर दे रहे हैं, तो उस केस में कंसेंट जो है वो नहीं रिक्वायर्ड रहेगी। सी, तो कितने लोगों की कंसेंट लेशन कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, उस दिन जितने लोगों को भी हमने बेच दिया है, बुक कर दिया है, उनके 2/3 की हमको परमिशन लेना पड़ेगी। देन अगेन दी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए 5 साल का क्लॉज यहां पर दिया हुआ है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जो आता है, तो बिल्डर और डेवलपर और प्रमोटर हैज टू मेंटेन, और कुछ भी डिफेक्ट होता है तो उनको कंपनसेट करके देना होगा। अगर वो नहीं करके दे रहे हैं 30 डेज के अंदर, देन कंपनसेशन हैज टू बी पेड। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोजेक्ट, मैं एक डेवलपर हूं, मैं अपनी बिल्डिंग का डेवलपमेंट कर रहा हूं, मेरा ब्रिक वर्क हो चुका है, स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, नाउ आई एम शॉर्ट ऑफ फंड्स एंड आई वांट टू सेल ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट एज इट इज टू सम अनदर बिल्डर। सो उस केस में सेक्शन 15 बोलता है 2/3 ऑफ द अलॉटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल रेरा की भी लगेगी। नया जो प्रमोटर रहेगा उसके सेम ऑब्लिगेशंस रहेंगे एज ऑफ द प्रीवियस प्रमोटर। नो एक्सटेंशन ऑफ द टाइम विल बी गिवन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड द प्रमोटर shall be liable for the default defect and delay in the project। जो भी नया प्रमोटर रहेगा, he has to, I am seeing some hands have been raised in the chat box. So I would request, sir, please post your query in the chat box so I can answer it.
See, moving forward, there is a concept of रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन. जो भी प्रोजेक्ट का हम प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसका इंश्योरेंस भी प्रमोटर को लेना होता है. लैंड, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ दी जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा. द प्रमोटर हैज टू पे द प्रीमियम. अभी काफी सारे स्टेट में ये चालू नहीं हुआ है. दिस इज वन ऑफ द अनदर न्यू एरिया ऑफ प्रैक्टिस, जहां पर हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योरेंस एडवाइजरी का सर्विसेज भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. हम इंश्योरेंस में एडवाइस कर सकते हैं किस तरह से सारी चीजें होंगी, उसका जो बेनिफिट है इंश्योरेंस का वो किस तरह से हम अलॉटी को ट्रांसफर करेंगे, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी जो बनेगा उसको इंश्योरेंस ट्रांसफर करेंगे. सो दिस ऑल आर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रमोटर जो सेक्शन 16 में इंश्योरेंस से रिलेटेड बताए गए हैं. सर ने एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछा हुआ है कि वाई बेसिक स्ट्रक्चर प्लॉटेड डेवलपमेंट बोल के रो हाउस करेगा तो लेना पड़ेगा, एंड अलॉटी शुड गेट दी कंपनसेशन. सब दो चीजें हैं यहाँ पर. अगर मेरा ओरिजिनल प्लान जो है इट इज अप्रूव्ड फॉर दी प्लॉटेड डेवलपमेंट, मैंने बोला है कि मैं प्लॉट डेवलप करूंगा और मैं प्लॉट की ही रजिस्ट्री कर रहा हूं, एंड I have entered a similar different agreement with the सेम क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रो हाउस और हिज हाउस, तो उस केस में सेपरेट परमिशन नहीं लेना पड़ेगी रेरा से या अलॉटिस से. सिर्फ बिल्डिंग की परमिशन जो लगती है लोकल वो लेना पड़ेगी. बट इफ आई एम चेंजिंग माय इंटायर प्रोजेक्ट, की मैं सारे जितने भी प्लॉट से उस पर रो हाउस बनाने के बाद में ही बेचूंगा, इन दैट केस अगर जो हमारे अलॉटीज हैं उनसे हमको कंसेंट लेना पड़ सकती है. The another question is, my question is, one person has built 3-story building for his personal use for his family, which include 3 flat on each floor, and it is third floor, 3-floor building. After some time, he want to sell the building, which includes separate flat registry for each flat. Does this require RERA registration? सर आपकी सबसे और 3 नो हो रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट तो ज्यादा हो गया है. बट चूंकि ये पर्सनल यूज के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, उनका कोई सेल, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, पर्सनल यूज के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो रेरा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रहेगी. लेटर ऑन अगर आप सेपरेट रजिस्ट्री प्रकोष्ठ आपका चेंज करवा कर करने वाले हैं, तो उस केस में भी मुझे नहीं लगता आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं तो रेरा की रिक्वायरमेंट यहां पर आने वाली है. अगर आपकी जो भी बिल्डिंग है उसका टीएनसी अप्रूव हुआ है, टीएनसी में आपने सारी चीजें करवाई है, देन बिल्डिंग परमिशन लिया हुआ है, कमर्शलाइज्ड है, कमर्शलाइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल या मार्केट, या आप बेचना चाह रहे हैं, इन दैट केस द रेरा रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड. चलिए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जो प्रमोटर है उसको गवर्नमेंट होने के बाद में अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना होगा. अगर फ्लैट है तो अनडिवाइडेड प्रॉपर, जो आपका एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बन गया है तो उनको भी आपको जो कॉमन एरियाज है वो भी ट्रांसफर करके देना होगा. 3 महीने के अंदर जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया या हैंडिंग ओवर कर दिया, उसके 30 डेज के अंदर सारे डॉक्यूमेंट, प्लान्स वगैरह सब कुछ देना होता है. नाउ हम कंपनसेशन की इतनी जगह बात करिए तो कितना कंपनसेशन लगेगा इफ द प्रमोटर फेल्स. अलॉटी खुद चाहता है कि मैं विड्रॉ कर लूं प्रोजेक्ट से बाय वट एवर द रीजन, सो कितना रिटर्न होगा, अमाउंट पेड बाय द अलॉटी प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन. कितना इंटरेस्ट रहेगा, 2% प्लस एमसीएलआर प्लस 2% का यहाँ पर इंटरेस्ट को पे करना रहेगा. डिफेक्ट अगर है तो उसका भी डिफेक्ट का कंपनसेशन अलॉटी को देना होता है. कोई टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है. और एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज रेरा, सो रेरा जो भी कंपनसेशन यहाँ पे डिसाइड करता है दैट हैज टू बी पेड टू दी अलॉटी. नाउ क्वार्टरली कंप्लायंस, जो हम पहले एक बात कर रहे थे, फर्स्ट वन वाज रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अभी हम चेकलिस्ट डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे.
अभी क्वार्टरली कंप्लायंस में हम लोग बात करते हैं कि हर 3 महीने में जो रेरा को त्रैमासिक जानकारी क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जो सबमिट करना होती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या डिटेल्स देना होता है। अपडेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बुक्ड और सोल्ड इन द क्वार्टर, उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर कितनी यूनिट बुक हुई है या सेल हुई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, उसका स्टेटस हर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे मध्य प्रदेश में 15 फोटोग्राफ हमको देना होते हैं, 5 फोटोग्राफ बिल्डिंग के, 5 फोटोग्राफ फ्लोर वाइज और 5 फोटोग्राफ इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन एरिया के। तो इस तरह से 15 फोटोग्राफ we have to submit one CA certificate, one engineer certificate and completion certificate if it has been received in the quarter, वो देना होता है। बैंक स्टेटमेंट हमको सबमिट करना होता है, उस 3 महीने में जो भी बुकिंग आई है उसका बैंक स्टेटमेंट भी रेरा को देना होता है। सो दिस इज द क्वार्टरली कंप्लायंस जो भी हमको रेरा को 3-3 महीने में सबमिट करना होता है। एंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा रोल यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि 3 महीने में कितनी बुकिंग हुई है, उसके सामने एक्सपेंडिचर का क्या स्टेटस है, जो डेवलपमेंट होना था इंजीनियर ने कितना डेवलपमेंट किया है, बुक्स में कितना डेवलपमेंट दिख रहा है, एवरीथिंग वी हैव टू चेक एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू सबमिट द क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक एडिशनल एरिया क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट का भी डेवलप होता है कि हम हमारे क्लाइंट को क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मध्य प्रदेश रेरा का प्रोजेक्ट पैनल का स्क्रीनशॉट है, जहां पर क्वार्टरली कंप्लायंस जो होता है हमको इस तरह से सबमिट होता है। अभी नया एक जो स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश रेरा में, बाकी स्टेट्स का आई एम नॉट अवेयर, क्वार्टरली अलॉटीज की डिटेल भी रेरा मांगना स्टार्ट करने वाला है, जिसमें पूरी जो भी अलॉटीज है उनके नाम, उनके एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, दैट एवरीथिंग वी हैव टू सबमिट ऑन दी रेरा। अब रेरा बैंक अकाउंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेरा बैंक अकाउंट। और काफी सारे मिथ्स इस अकाउंट के बारे में, रेरा अकाउंट के बारे में है। सेक्शन 42LD जो है रेरा एक्ट का सेक्शन, इस पूरी रेरा अकाउंट के बारे में बात करता है। हम पहले समझते हैं कि रेरा अकाउंट के बारे में प्रोविजन क्या है। सो देयर विल बी 3 अकाउंट्स। फर्स्ट इज रेरा कलेक्शन अकाउंट, second one is RERA designated account and third one is RERA regular account या RERA current account। 3 खाते होते हैं। पहला होता है RERA कलेक्शन अकाउंट। अगर कोई कस्टमर है वो 10 लाख रुपए बिल्डर को देना चाहता है, सो ही विल बी डिपॉजिटिंग 10 लाख रुपीज इन दिस RERA कलेक्शन अकाउंट। वो 10 लाख रुपए यहां पर जमा कर देगा। इस 10 लाख में से 70% पैसा जो है वो रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और 30% पैसा जो है वो रेरा रेगुलर अकाउंट या रेरा करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो बेसिकली रेरा कलेक्शन अकाउंट इज एन एस्क्रो अकाउंट, जहां पर सिर्फ पैसा आता है, बुकिंग का पैसा आता है, और उस बुकिंग का पैसा आते ही 70% और 30% पैसा दो अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन कम्स दिस रेरा 70% अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट। ये जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है, इस अकाउंट से पैसा जब भी हमको निकालना होता है, सो वी हैव टू सबमिट द डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हमको सबमिट करना होता है। एंड इन प्रपोर्शन टू द डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन द अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस 70% अकाउंट। और जो 30% वाला खाता है, इस 30% के खाते से हम जब भी चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर दी अदर एक्सपेंसेस वी कैन यूटिलाइज दिस अकाउंट। तो अब प्रोविजन की बात करते हैं, प्रोविजन क्या बोलता है। Section 42LD of this act says that 70% of the amount realized for the real estate project from the allottees from time to time shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and shall be utilized for that purpose only। क्या बोल रहा है? 70% पैसा जो है
जो भी बुकिंग आती है, जो रियलाइजेशन अमाउंट हो रहा है, जो अलॉटिस से हम टाइम टू टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, और इस पैसे को कॉस्ट ऑफ लैंड या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कवर करने के पर्पज से ही यूटिलाइज करना होगा। फर्दर provided that the promoter shall withdraw the amounts from the separate account to cover the cost of project in proportion to the percentage of completion of project। भाई जितना कंप्लीशन हुआ है उसके प्रपोर्शन में ये 70% पैसे को withdraw करना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपया आया, 10 लाख में से 70%, 7 लाख रुपया का अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो 30% हुआ है, 40 हुआ है, 20 हुआ है, और वो 20% 3 लाख हो सकता है, तो आपको 7 लाख में से 3 ही लाख विड्रॉ करने की एलिजिबिलिटी बनेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा 7 लाख विड्रॉ कर लें। प्रोवाइडेड फर्दर that the amounts from the separate account shall be withdrawn by the promoter after it is certified by an engineer, an architect, and a chartered accountant in practice that the withdrawn is in proportion to the percentage of completion of the project। मतलब बिल्डर को अगर पैसा लेना है तो पहले एक इंजीनियर से, एक आर्किटेक्ट से, एक सीए से सर्टिफिकेट लेना होगा कि जो ये पैसा विड्रॉ हो रहा है इट इज इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। 1 करोड़ रुपए की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड थी, जिसमें से 40 लाख रुपया खर्च हुआ है टोटल, 40 लैक्स। तो 40% डेवलपमेंट हुआ। इस 40% डेवलपमेंट के हिसाब से ही आप 7 लाख रुपया विड्रॉ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7 लाख पूरा आया तो पूरा विड्रॉ कर लिया, या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तो 40 यहाँ पर अकाउंट में तो मैं पूरा विड्रॉ। इट हैज टू बी विड्रॉन इन प्रोपोर्शन टू दी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द प्रमोटर शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड 6 महीने के, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 6 महीने के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से ऑडिट करा के प्रमोटर को सबमिट करना होगा रेरा को कि सारा जो कंप्लायंस है इस डेजिग्नेटेड अकाउंट का वो पूरा हो चुका है। देन अगेन इसी से रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी नहीं होगी, इन शॉर्ट मैं आपको यहां पर बताता हूं कि क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी क्या नहीं होगी। सो व्हाट टू इंक्लूड इन द कॉस्ट: लैंड कॉस्ट, प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस, एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लैंड कॉस्ट किसको बोलेंगे? अगर मान लीजिए आपने जमीन खरीदी हुई है तो आपने जितने में खरीदी थी उसकी जमीन ले ली, उतनी वैल्यू ले ली। कुछ स्टेट बोलते हैं कि एएसआर वैल्यू दे दो। जिस दिन कमर्शियल यूज चालू किया है, जैसे छत्तीसगढ़ रेरा में देयर इज अ प्रोविजन कि जब जिस दिन आपने कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट की है उस दिन आपकी जो एएसआर वैल्यू बनती है आप उतना लैंड दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में बोलते हैं जितने में आपने खरीदी थी उतने में लेनी है, जो भी आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जहां जमीन डेवलपर की है ही नहीं, उसने किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में डेवलपमेंट किया है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर लैंड कॉस्ट जीरो आने वाली है, या जो उसने खरीदी थी वो आएगी, या एएसआर वैल्यू जिस स्टेट में जैसा प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप इसके साथ में कोई रजिस्ट्री का खर्च लगा है तो वो डाल दीजिए, कोई और इस तरह का खर्च है जो डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड है तो वो सारा आप डाल सकते हैं। देन प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस। प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस क्या होती है? रेरा को जो आप फीस पे कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्लियरेंस फीस हो गई। आर्किटेक्ट को कोई पैसा दे रहे हैं वो आ गया। आपने लोकल अथॉरिटीज को कोई पैसा दिया है तो वो सारा पैसा प्रोजेक्ट क्लियरेंस में आ सकता है। सो दिस ऑल आर दी कॉस्ट दैट कैन बी कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट क्लियरेंस। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो जो है वो सारी यहां पर हमको इंक्लूड करनी है। क्या इंक्लूड नहीं करना है उसकी बात करते हैं फिर वापस इस पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं कवर करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं कवर करना है। ऑफ साइट एक्सपेंसेस नहीं कवर करना है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस नहीं कवर करना है। इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं कवर करना है। इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर अलग अलग स्टेट का अपना अपना है। कुछ स्टेट बोलते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर है तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कवर कर लीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। लाइकवाइज जो भी सैलरी का खर्चा है, साइट सैलरी है, अगर आपके साइट पे जो चौकीदार है या साइट पे कोई स्टाफ रखा हुआ है आपने
उसकी अगर कोई कॉस्ट है तो दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, ऐसे तमाम खर्चे जो प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो सारे खर्चे आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीए सर्टिफिकेट। अब सीए सर्टिफिकेट बनाते वक्त हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला, हम जब भी सीए सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें एक रेफरेंस आता है इंजीनियर ने क्या कॉस्ट ली हुई है, इंजीनियर ने क्या परसेंटेज लिया हुआ है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ये पहले देखें कि जो इंजीनियर का सर्टिफिकेट है दैट वी आर रिलाइंग अपॉन, वो उसी पीरियड का हो जिस पीरियड का हम भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस डेट का ही हो जिस डेट को हम दे रहे हैं। देन जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन नॉट सर्टिफाई द एस्टिमेट, एस्टिमेशन जो है वो तो इंजीनियर के सर्टिफिकेट से हमने उठाया। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी शुड मेक अ नोट ऑफ दिस इन अवर सर्टिफिकेट दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ द इंजीनियर। यहां हम लिखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द इंजीनियर। उनसे अगर हमने कोई रिटर्न सर्टिफिकेट लिया है तो हम उसको ले लें। देर आर सम इंस्टांसेस जहां पर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो इंजीनियर बाद में बढ़ाई जाती है, या कोई एस्केलेशन, प्राइस एस्केलेशन हो गया, तो पहले सोचा था 5 करोड़ में प्रोजेक्ट बनेगा, अब 6 करोड़ लग रहा है, तो रिवीजन हुआ कॉस्ट का। सो उस केस में भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी शुड मेक अ नोट कि जो इंक्रीज हुआ है प्राइस के अंदर, वो सारा इंक्रीज जो इंजीनियर है उन्होंने एस्टिमेट करके दिया हुआ है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है वो उनको सर्टिफिकेट बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। प्लस जो भी खर्च हम लोग सर्टिफिकेट के अंदर डाल रहे हैं, द कॉस्ट जो भी क्वार्टरली हम सर्टिफिकेट के अंदर शो करना है कि ये खर्चा लगा है, इट शुड बी अ पेड एक्सपेंडिचर। अनपेड एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस सीए सर्टिफिकेट, अदरवाइज आपका जो ड्राइंग लिमिट है वो ओवर स्टेटेड आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। अब रियल एस्टेट एजेंट किसको बोलेंगे? सो सेक्शन 2 सबसेक्शन जेड एम, दिस प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। कौन कौन होंगे भैया ये रियल एस्टेट एजेंट? एवरी पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, एक खरीदार था, एक बेचने वाला था, इन दोनों को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपस में, ही इज एन एजेंट हु निगोशिएट्स और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन। निगोशिएट कर रहा है या किसी एक के बिहाफ पे काम कर रहा है। सर मेरा पड़ोसी है, वो प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करता है, वो गया, या प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम नहीं करता, वो मेरे साथ में गया और निगोशिएट करा ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, रिसीव्स रिम्यूनरेशन और फीस और कमीशन। अगर उसने कोई रिम्यूनरेशन, फीस, कमीशन लिया है, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर्स, मिडिलमैन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, ये सारी जो चीजें हैं अगर इसमें कवर होता है तो ही इज टर्म्ड एज रियल एस्टेट एजेंट। सर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे ऑफिस में एक बिल्डर क्लाइंट बैठे हुए हैं, वो अपना ऑडिट कराने आए। एट द सेम टाइम एक आईटीआर फाइल कराने के लिए हमारे एक दूसरे क्लाइंट आए। मैंने उन दोनों को आपस में मिलाया और इंट्रोड्यूस किया। बात बात में पता चला कि जो हमारे दूसरे क्लाइंट है जो अपना आईटीआर फाइल करवाने आए थे, उनको अपना एक घर खरीदना है। जो हमारे बिल्डर क्लाइंट है उन्होंने बताया कि ये मेरी ऐसी ऐसी एक प्रॉपर्टी आ रही है और यहाँ पे घर आप ले सकते हैं। सर क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में रियल एस्टेट एजेंट की डेफिनेशन में कवर होने वाला हूं? सर इमोशनली कई लोगों का ऐसा सोचना है कि नहीं, मैं एज अ सीए मैंने सिर्फ मिलवाया है, मैं नहीं कवर होऊंगा, बट आई वुड लाइक टू
से सर एक चैट बॉक्स में ये भी आया, इफ यू रिसीव कमीशन ऑन दिस देन ओनली यस। सर ऐसा नहीं है, रिसीव कमीशन हुआ है या नहीं हुआ है तो भी जो लिटरल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसकी, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मिला है या नहीं मिला है तो भी कवर हो जाता है, तो भी कवर हो जाता है। यस बिल्कुल ठीक बात है सर, सीए कैन नॉट रिसीव कमीशन, बट इट कैन बी रिसीव्ड इन एनी अदर हेड, कोई और नाम से हम इसको बता सकते हैं कि उस नाम से आया है। एजेंट डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज वेरी वाइड। Everyone who is introducing two persons, prospective buyers and sellers, negotiating, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और उनको कनेक्ट कर दिया, रिकमेंडेशन मिला है नहीं, देन ऑल्सो एवरीवन इज कवर्ड, और एजेंट के प्रोविजन जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? यस, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट सेज दैट एवरी एजेंट मस्ट टेक रजिस्ट्रेशन विद द रियल एस्टेट अथॉरिटी। ही शुड कंपल्सरीली take the registration if they want to deal, felicitate, sale or apartment in any real estate project। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो प्रोजेक्ट रियल एस्टेट में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में आते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट में अगर वो कोई सेल परचेज कर रहे हैं तो उनको एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। सर मेरा एक पुश्तैनी मकान है और उस मकान को मैं बेचना चाहता हूं, तो मैंने हमारे पड़ोस में जो एक ब्रोकर है उनको बोला कि आप ये मकान बिकवाने में मेरी मदद कर दीजिए। उन्होंने एक प्रोस्पेक्टिव बायर मुझे लाके दिया और उस मकान को हमने बेच दिया। क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी? नहीं, इस केस में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं इट इज नॉट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। सो अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति का रिटर्न फाइल कर रहे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में जो इस तरह के ट्रांजेक्शन में डील करता है, और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सर मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूं और मैं रेंट पर प्रॉपर्टीज दिलवाता हूं। My job is to provide to connect the landowners and people who want to take property on rent। रेंट पर हम प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो क्या रेरा की रिक्वायरमेंट रहेगी? हम सिर्फ रेंटल का कमीशन लेते हैं? नहीं रहेगी, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूं, मेरा काम है, मैं पुराने घर भी बिकवाता हूं, मैं रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में भी डील करता हूं, और मैं रेंट पर भी इनकम जो है रेंट पर भी अपनी प्रॉपर्टीज लोगों को दिलवा के उस पर कमीशन लेता हूं। अब मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस, बिल्कुल रहेगी। सो रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है? रजिस्ट्रेशन shall be in such form, manner and time accompanied by such fees and documents as may be prescribed। रजिस्ट्रेशन जो है अथॉरिटी एक सिंगल रजिस्ट्रेशन देती है पूरे स्टेट का। सो इफ यू आर मल्टीपल स्टेट में डील करते हैं तो आपको मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल अलग अलग स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो रजिस्ट्रेशन है ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है। एक बार रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एंड एजेंट कमिट्स ब्रीच और एनी कंडीशन और मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। अब एजेंट के क्या फंक्शन है? तो एजेंट विल नॉट डील विथ अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जिसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है पर वो रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस द एजेंट शुड नॉट इंडल्ज हिमसेल्फ इन डीलिंग ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। कहने का मतलब यह है कि एजेंट जो है वो बी टू बी ही वर्क कर सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, अगर मैं एजेंट भी रजिस्टर्ड हूं, तो हम डीलिंग आपस में कर सकते हैं। वी कैन नॉट
वर्क इफ एनी वन ऑफ अस इज अनरजिस्टर्ड, अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं कमीशन नहीं दे सकता, अगर मैं एजेंट रजिस्टर्ड हूं, प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं कमीशन नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए आप जब अभी ऑडिट करेंगे और ऑडिट में पीएनएल में एक खर्च आ रहा है कमीशन एक्सपेंसेस, आपने टोटल 25-20 करोड़ रुपए का सेल किया है और उसका 3% बराबर कमीशन का जो है खर्च बुक किया हुआ है बुक्स के अंदर। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट इज अवर ड्यूटी टू चेक वेदर दिस commission expenses which has been paid to the agents, they bear the registration number or not, they are registered with the real estate regulatory authority or not, वो उनको देखना पड़ेगा। The agent has to maintain books of accounts and record. He should ensure that no unfair trade practice is there, कोई false commitment नहीं करना है, कोई झूठे अप्रूवल के बारे में नहीं बताना है, कोई तरह का फॉल्स क्लेम सर्विसेज को लेकर एजेंट को नहीं देना है। हैज टू हेल्प अलॉटी टू गेट ऑल दी डॉक्यूमेंट, जो लोन लेता है अलॉटी से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, एनी अदर फंक्शन विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सो ऑल द फंक्शंस दैट एजेंट हैज टू फॉलो। अब मान लीजिए अगर एजेंट ने नहीं किया तो क्या होगा, अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन दी एजेंट्स। ये मध्य प्रदेश रेरा का एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट है, एजेंट्स को सबमिट करना होते हैं, एनुअली होता है, 30 अप्रैल के पहले ये फॉर्म सबमिट करना होता है, अदरवाइज पेनल्टी लगती है। दैट पेनल्टी इज अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ जो भी वो प्रोजेक्ट में डील किया हुआ है। इस तरह से एजेंट को अपनी डिटेल्स देना होती है। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन की चेकलिस्ट के ऊपर कि क्या डॉक्यूमेंट है जो एज प्रोजेक्ट अगर हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो हमको सबमिट करना होते हैं। फर्स्ट, केवाईसी। किस किस की केवाईसी? प्रमोटर की। प्रमोटर मतलब जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, उनकी केवाईसी। केवाईसी इंक्लूड्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ। अगर हम किसी जमीन मालिक के साथ में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस केस में लैंड ओनर के डॉक्यूमेंट, बिकॉज लैंड ओनर को भी हमको एज अ को प्रमोटर रजिस्टर करना है। सो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ऑफ द लैंड ओनर, इनके सभी लोगों के मोबाइल नंबर, email IDs, audited balance sheet of last 3 years, then certificate of registrations। अगर आप कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, डीड, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में देर इज अ क्लॉज 442B ऑफ जो है वो हमको यहाँ पर इंक्लूड कराना है। 42B जो है वो ये बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होगा जब तक कि सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। फीस कैलकुलेशन शीट हमको देनी होती है। बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ गरुड़ा एनक्लेव and my firm's name is Anand Jain Constructions Private Limited. So the bank account name will be Anand Jain Constructions Private Limited dash Garuda Enclave Collection Account, Garuda Enclave Designated Account, like this। हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग अकाउंट खोलना है। अगर मैं कंपनी हूं, एक पार्टनरशिप फर्म हूं, एक इंडिविजुअल हूं और मैं 10 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली रन कर रहा हूं तो मुझे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग अकाउंट एक्सक्यूज मी खोलना होंगे, राइट। देनी होती है। उसके बाद में आता है कॉलोनाइजर लाइसेंस, जो कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए कॉलोनाइजर लाइसेंस that we have to submit the land ownership document, the chain documents, joint development agreement। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप लोग सभी समझते होंगे, आई बिलीव। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? देयर इज अ लैंड ओनर एंड डेवलपर। लैंड ओनर और डेवलपर दोनों मिलकर एक जमीन के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं
और उस डेवलप्ड जमीन के प्लॉट्स जो हैं या बिल्डिंग्स जो हैं वो किसी व्यक्ति को बेचने वाले हैं आगे जाकर। सो इट इज कॉल्ड एज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिसमें कि एक नई एंटिटी नहीं बनती है, दो इंडिविजुअल अलग अलग मिलके डेवलपमेंट करते हैं, और एक नया जेवी जो होता है जॉइंट वेंचर, इट इज नॉट अ जॉइंट वेंचर, इट इज अ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज डेवलपमेंट एग्रीमेंट। आई एम अ बिल्डर and I am developing your land into plots in consideration of some amount, for example, 300 rupees square feet, 500 rupees square feet. So it is a development agreement. जीएसटी के अंदर डेवलपमेंट एग्रीमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को लेके बहुत सारी एम्बिग्विटी है, एंड इट इज अ वास्ट एरिया ऑफ प्रैक्टिस फॉर अस बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि डेवलपमेंट अग्रीमेंट बनाने से लेके हमारा काम शुरू हो जाता है। इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डेवलपमेंट एग्रीमेंट आर डिजाइंड लाइक दैट दे सरपास द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीएसटी लॉज, उसके ऊपर जीएसटी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट का रिवर्स चार्ज में नहीं लगता है, या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज में नहीं लगता है, एंड बाय एनी मीन इफ वी कैन प्रूव that clauses with help of this joint development agreement, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग की सर्विसेज हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड I would like to quote that various CAs, many chartered accountants are charging 1 lakh of rupees for this drafting part, ड्राफ्टिंग ऑफ दिस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज पर ही अगर अग्रीमेंट प्रॉपर बनता है तो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आए। अभी टीडीआर को लेके बहुत सारा इशू चल रहा है। हम निर्मल लाइफ स्टाइल का केस देखें या श्रीनिवासा का देखें, जो अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ में आया है, दोनों अच्छे केसेस, केस लॉज अभी हमारे सामने आए हैं, बट स्टिल कई स्टेट्स हैं जहां पर टीडीआर के ऊपर अभी भी टैक्स लिया जा रहा है, बिकॉज देयर अग्रीमेंट्स आर नॉट वेल ड्राफ्टेड। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लिए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर, अगेन हमको कंसेंट एक लैंड ओनर की सबमिट करनी होती है। देन एनकम्बरेंस ऑफ द अग्रिमा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है। ओके, सो एनकम्बरेंस ऑन द लैंड एंड नॉन एनकम्बरेंस ऑफ द लैंड, एक सर्टिफिकेट हमको यहाँ पर जो एडवोकेट होते हैं उनसे टाइटल सर्च करवा कर देना होता है। अप्रूवल ऑफ द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, बिल्डिंग परमिशन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज, जो भी नक्शे अप्रूव करवाए हैं आपने वो सारे आपको यहाँ पर देना होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जो आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है एंड बिल्डिंग परमिशन जो है या जो रेरा की अप्रूवल है, उसकी टाइम लिमिट आपस में लिंक्ड है। इफ योर एग्रीमेंट इज एक्सपायरिंग, यू डोंट हैव अ राइट टू डेवलप। इफ योर बिल्डिंग परमिशन इज एक्सपायरिंग, you don't have a right to develop that building. If your RERA is expiring, तब भी प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू सिंक ऑल दिस थ्री थिंग्स। हमारी जितनी भी परमिशन रहे वो तीनों आपस में लिंक्ड होनी चाहिए, उनकी जो भी टाइम लिमिट है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करे। ऐसा नहीं हो कि एक चीज एक्सपायर हो रही है दूसरी चीज में कुछ और लिखा हुआ है। देन एनवायरमेंटल क्लियरेंस, नजूल क्लियरेंस, सैंक्शन लेआउट प्लान, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या देने वाले हैं वो सारी चीजें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में हमको देना होती है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये डेवलपमेंट होने वाला है, ये रोड रहेगा, वाटर फैसिलिटी इस तरह से रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी का ये रहने वाला है, हमारा क्लब हाउस ऐसा रहने वाला है, किड्स प्ले एरिया ऐसा रहेगा, गेट किस तरह से बनाने वाले हैं, बाउंड्री वॉल कैसे रहने वाली है। सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी मेंशन नियर इन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस। अपार्टमेंट डिटेल्स, गैराज डिटेल्स, बेसमेंट पार्किंग, स्ट्रीट पार्किंग, ओपन पार्किंग, कॉमन एरिया फैसिलिटीज, अगेन likewise as
specification of the project, balance sheet of the project, status of the project, apartment size based on carpet area. Here is a term carpet area. Carpet area, built up area and super built up area. There are three terms. कारपेट एरिया किसको बोलते हैं, बिल्टअप एरिया किसको बोलते हैं और सुपर बिल्टअप एरिया किसको बोलते हैं. सो कारपेट एरिया बेसिकली इज द एरिया जहां पर हम कारपेट बिछा सकते हैं या दीवार के अंदर अंदर जो एरिया रहेगा दैट इज कारपेट एरिया. जब हम इसमें दीवार का एरिया इंक्लूड कर लेते हैं तो वो एरिया हो जाता है बिल्टअप एरिया. और जब हम इसमें कॉमन एरिया भी इंक्लूड कर देते हैं सो दैट इज अ सुपर बिल्टअप एरिया. बेसिक टर्म्स में अगर हम समझे तो इस तरह से तीनों एरिया सर चलते हैं. एंड रेरा के अंदर सिर्फ कारपेट डेफिनेशन ही वर्क करती है. आप जहां भी देखेंगे सभी जगह कारपेट एरिया ही मेंशन होगा. बट इन ट्रेड, इन प्रैक्टिस, बाय द डेवलपर, बाय द बिल्डर, बाय द इंडस्ट्री, दे यूज द टर्म एज सुपर बिल्टअप. तो हम जब भी कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं वहां पर दोनों एरिया मेंशन कर दे. द कारपेट एरिया इज दिस एंड सुपर बिल्टअप एरिया इज दिस. सो इट विल बी लिटिल इजी टू अंडरस्टैंड कि कितना मार्कअप दोनों के बीच में कितना डिफरेंस किया हुआ. नेक्स्ट, एजेंट की डिटेल. इफ देर आर स्पेसिफिक एजेंट, सोल एजेंट्स जो सिर्फ पोदार जी आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालिए ना, मैं आंसर करता हूं. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 20 मिनट बचे हैं तो आई विल कंक्लूड फर्स्ट द स्लाइड्स देन आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन. डेवलपमेंट टीम की डिटेल, आपके यहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट कौन कौन करने वाले हैं, हु ऑल विल बी द कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स कौन रहेंगे, आपके इलेक्ट्रिफिकेशन का अगर काम है तो वो कौन करने वाला है, प्लम्बिंग कौन करने वाला है. इफ देर आर मल्टीपल एजेंसीज तो उनकी सारी आप डेवलपमेंट टीम की डिटेल यहाँ डाल सकते हैं. देन डेवलपमेंट वर्क प्लान वी हैव टू प्रोवाइड दैट this is the phase, this is manner, this is the flow by which we are going to develop the project. And this work plan should be linked to your payment plan. क्योंकि अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर आपका डेवलपमेंट कम हुआ है तो आप पैसा भी उतना ही ले सकते हैं. सो इट शुड लिंक्ड विथ योर पेमेंट प्लान. देन ड्राफ्ट एग्रीमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमने आगे पढ़ा हुआ है कि 10% से ज्यादा पैसा ड्राफ्ट अग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए बिना नहीं ले सकते हैं. और ड्राफ्ट एग्रीमेंट में जो हमने एक बार लिख दिया दैट विल बी ट्रीटेड एज द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट. तो हम हमारा एग्रीमेंट प्रॉपरली बनाएं, उसमें डिफेक्ट लाइबिलिटी, कंपनसेशन के क्लॉज, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी से रिलेटेड क्लॉज, टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको जो भी तमाम चीजें यहां पर लिखनी है वो आप ड्राफ्ट एग्रीमेंट में जरूर लिखिए. मेनी पीपल टेक दिस ड्राफ्ट एग्रीमेंट एज अ वेरी कैजुअल थिंग, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ड्राफ्ट एग्रीमेंट को बहुत प्रॉपरली डिजाइन कीजिए. देन न्यू प्रोजेक्ट एफिडेविट, हमारे यहाँ एमपी में एक नए प्रोजेक्ट का एफिडेविट देना होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है नया प्रोजेक्ट है, कोई भी बुकिंग, मार्केटिंग, सेलिंग नहीं हुआ है, हम रजिस्ट्रेशन आएगा उसके बाद ही सारा काम करने वाले हैं. इस तरह का एक एफिडेविट होता है, सीए सर्टिफिकेट होता है, इंजीनियर का सर्टिफिकेट होता है. देन अलग अलग शेड्यूल्स हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, फ्लोर प्लान, पेमेंट प्लान, प्रोजेक्ट माइन्यूट डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस, ब्रोशर, कॉस्ट एस्टिमेट, क्वार्टरली कॉस्ट बाइफरकेशन हो सकता है. मध्य प्रदेश, ये मैंने जो लिस्ट किया है मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग किया है, हो सकता है महाराष्ट्र में अलग हो, राजस्थान में अलग हो, यूपी में अलग हो, हर स्टेट में अलग. बट जो भावना है इस एक्ट की, जो अथॉरिटी का इंटेंशन है, दैट इज टू गेट माइन्यूट डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट आता है तो अथॉरिटी के पास ये डॉक्यूमेंट एज अ बेस अवेलेबल रहे. हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 4-5 साल पहले एक हेडलाइन आई थी एक न्यूज़पेपर में, रेरा मांग रहा है तार की जानकारी, बिजली के तार घर में किस तरह से लगेंगे, क्या स्विच बोर्ड लगेंगे. तो ऐसे बेसिक बेसिक छोटी छोटी जानकारी भी रेरा मांगता है. एंड दिस ऑल डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड बाय रेरा इन केस ऑफ फ्यूचर क्वेरीज और कंप्लेंट्स. फिर एक फॉर्म बी का एफिडेविट होता है. ये एफिडेविट ऑल ओवर स्टेट, सभी स्टेट्स में एक जैसा ही एप्लीकेबल है. फॉर्म बी का एफिडेविट
जिसमें बेसिक डिटेल हम कंप्लीट करने वाले हैं, ये लिख कर देते हैं कि हम जो भी पैसा लेंगे वो रेरा अकाउंट में लेंगे, उसको वहीं यूज करेंगे, ये सारी जानकारी। एफिडेविट ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च इन लास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों में क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उनकी जानकारी। फायर एनओसी अगर एप्लीकेबल है तो वो टाइमली हम लाकर सबमिट कर देंगे। फर्म डिसॉल्व या कंपनी को डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। और कोई केस किसी अथॉरिटी के सामने पेंडिंग नहीं है, इस तरह का भी एक एफिडेविट यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के वक्त देना होता है। So these are all the documents which one has to submit while having the registration of the project. हो सकता है कुछ स्टेट में अलग डॉक्यूमेंट लगते हो, कोई छोटा मोटा ऊपर नीचे फेर बदल हो, बट टू माय अंडरस्टैंडिंग मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, झारखंड, 5-6 स्टेट के रेरा एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ छोटा मोटा चेंज रहता है, बाकी ऐसा कोई विशेष अंतर डॉक्यूमेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। फीस क्या लगती है, तो जैसे एमपी रेरा की ये फीस स्ट्रक्चर है। प्लॉटेड अगर रेसिडेंशियल है तो 10 रुपए स्क्वायर मीटर, कंस्ट्रक्टेड है तो 10 रुपया स्क्वायर मीटर, कंस्ट्रक्टेड कमर्शियल है तो 20, एंड मिक्स प्रोजेक्ट है तो प्रोपोर्शन टू द एरिया। छत्तीसगढ़ में थोड़ा अलग है, राजस्थान में थोड़ा अलग है। छत्तीसगढ़ में देयर इज अ कैप, झारखंड में भी देयर इज अ कैप, मैक्सिमम उतना रहता है। मध्य प्रदेश रेरा मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा महंगा रह रहा है, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। एजेंट का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, फोटो, केवाईसी डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, एफिडेविट दैट आई एम ए इंडिविजुअल, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट विद द फीस हमको सबमिट करना होते हैं। इंडिविजुअल और पार्टनर प्रोप्राइटरशिप हमको दो अलग अलग एंटिटी माना है। इंडिविजुअल एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आर डिफरेंट एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रेरा। तो अगर आपका जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट इंडिविजुअल नाम से बना हुआ है और आप अपनी फर्म के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, सो दैट विल नॉट बी परमिसिबल। अगर आप एजेंट हैं और आप अपने फर्म के नाम से, जैसे मैं जेन ब्रोकर्स के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन लेता हूं, सो इन दैट केस जेन ब्रोकर्स के नाम से अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो इन दैट केस आई विल नॉट बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल, आई विल बी कॉल्ड एज प्रोपराइटरशिप फर्म, और वहां पर रजिस्ट्रेशन फी 50,000 है, जबकि इंडिविजुअल कैटेगरी में सिर्फ 10,000 रुपए है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड प्रोपराइटरशिप फर्म इन दिस रेरा एक्ट। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन लगा रहे एज अ प्रोजेक्ट या एज ए एजेंट, उस समय आप ये ध्यान रखें कि आप किस व्यक्ति के लिए लगाने वाले हैं। लाइकवाइज फीस इंडिविजुअल के लिए 10,000 और अदर देन इंडिविजुअल 50,000। आई एम डन विथ माय द प्रेजेंटेशन। जो मैं अपने पार्ट से बेसिक चीज, एक आई ओपनर, आप लोगों को अपना लिमिटेड नॉलेज शेयर कर सकता था, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। नाउ वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तो वो मैं यहाँ पर आंसर कर सकता हूँ। देयर इज अ क्वेरी, इफ देयर इज अ स्टे ऑन द प्रोजेक्ट बाय द कोर्ट फॉर मोर देन 1 year, then what will be the deadlines and extension? Sir, we have to see why there is this stay on the project. सबसे पहले हमको stay देखना पड़ेगा कि क्यों है, and the stay is due to fault on the part of the promoter। उस तरह से कोई चीज है तो उन सारे केसेस के अंदर द प्रमोटर हैज टू कंपनसेट द अलॉटीज। मानवी जी, वी कैन टेक सम क्वेरीज, जो भी हमारे अटेंडीज है, इफ दे वांट टू हैव सम क्वेरीज तो हम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप चैट बॉक्स में पुट कर दीजिए, या फिर आप एक बार वॉइस ऑन करके भी बता सकते हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, मंदसौर रियल सर लिविंग लेट फी ऑन पोर्टल इवन आफ्टर हैंड इन कंप्लीशन इन एमपी। यस सर, क्या होता है, देयर इज अ प्रोविजन कि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है या नहीं आया, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट।
अगर आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन 31 मार्च 2025 थी और आपने डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया है, सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट 100% हो चुका है, बट स्टिल योर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या आ भी गया है और आपने उसको सबमिट नहीं किया है, या कर भी दिया है बट यू हैव नॉट फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, सो इन दैट केसेस रेरा इसको कंप्लीट नहीं मानता है एंड वी हैव टू सबमिट द क्वार्टरली कंप्लायंस टिल द इनफाइनाइट पीरियड, या जब तक इस पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आता है। इन मध्य प्रदेश वी आर परस्यूइंग विद द अथॉरिटीज की वो इस पे कोई एक ऑर्डर लाकर एक डेडलाइन फिक्स कर दें और वहां उसके बाद से क्वार्टरली कंप्लायंस नहीं करना पड़े, बिकॉज मध्य प्रदेश में I have seen 50 lakhs rupees penalty have been levied on the projects for non-compliance of these things. There is another query by Ravi Jain ji. There is no provision of revision of returns. So, is it prudent to adjust expense in the next quarter? Ravi Jain ji, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहां तो है रिवीजन से रिलेटेड प्रोविजंस, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर होता ही है कई बार कि क्वार्टरली जब हम कंप्लायंस करते हैं तो पिछले पिछले क्वार्टर के अंदर हमारा कोई खर्चा लेना छूट जाता है, या बिल हम डाल रह गया, या बिल हमको बिल नहीं मिला, वॉट एवर द रीजन, तो उन केसेस के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप अगले क्वार्टर में डाल दीजिए, एनुलेशन जरूर कर लीजिए, डालकर अपने हाथ को सेव कर लेना चाहिए। वी शुड गिव नोट इन द सर्टिफिकेट कि इस तरह से होने वाला है। यशवर्धन जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम लेट फी फॉर नॉट फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न सिंस रजिस्ट्रेशन। सर, हर क्वार्टर की अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तक हो सकती है। स्टैट्यूटरी पेनल्टी जो है यश भाई, वो यही है एक्ट के अंदर। इसमें भी हमने पहले जो रेरा चेयरमैन थे उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक एमएनएसटी स्कीम लाकर जो पुरानी पेंडेंसीज है उनको क्लियर कर दीजिए, बट स्टिल वी आर वेटिंग कि कोई एमएनएसटी स्कीम आ जाए और सारे जो भी पुराने कंप्लायंसेस हैं उनसे हम छुटकारा पा सके। छत्तीसगढ़ में देयर इज सम स्कीम गोइंग ऑन जहां पे कंप्लायंसेस के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। or to highlight need to taken care of while registration or annual compliance certification by CA। प्रेरित भाई बहुत बड़ा सवाल बोला, पूरी पीपीटी फिर से रन आउट करनी पड़ेगी, बट शॉर्ट में बताना चाहूंगा जो भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ वी आर सर्टिफाइंग और वी आर रिलाइंग ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ अदर पर्सन, या हम प्रमोटर से भी जैसे क्वार्टरली कंप्लायंस होता है, सो मेनी ऑफ अस आर नॉट टेकिंग एनी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। भाई कितना बुकिंग हुआ है वो तो प्रमोटर ही बता कर देगा, उसका कंप्लीशन कब आएगा वो भी प्रमोटर बता कर देगा, उसका डेडलाइन कंप्लीट नहीं हुआ या प्रोजेक्ट एक्सपायर नहीं हुआ वो भी प्रमोटर ही बता के देगा। सो इस तरह की सारी चीजें वी शुड टेक एज अ मैनेटर फ्रॉम दी प्रमोटर, ताकि कल को कोई चीज होती है सो वी कैन सेफगार्ड अवर हैंड्स। Yes, Ravi bhai has confirmed there is a scheme going on in Chhattisgarh for defaulters. Okay. I think all the queries are now done. मुझे लगता है जिन जिन लोगों को पीपीटी के लिए भी कुछ लोगों के मैसेजेस थे, दो so those who want to have the PPT can WhatsApp me on my number. I will share the PPT. Okay. Ankur sir, Thank you so much. what to do now? एंड नोट करूँ। थैंक यू सो मच सी आनंद जैन सर फॉर सच एन एनलाइटिंग सेशन। बहुत कुछ जानने को मिला आज रेरा के बारे में। इतना ज्यादा डेप्थ में आपने समझाया कि ये आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। अभी तक सिर्फ रेरा को थियोरेटिकली देखा था, आज आपके सेशन के बाद में एक्चुअली समझ में आया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल हो सकता है जब हम बात करते हैं रेरा की।
बहुत ज्यादा अच्छे से आपने समझाया, हर एक पॉइंट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है फॉर श्योर। थैंक यू आनंद भाई। मैं सभी पार्टिसिपेशन का जो अटेंडी है, ऑडियंस है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे आनंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाला और सभी मेंबर्स के लिए कुछ पॉइंट निकाले उन्होंने। और कोशिश की है सभी मेंबरों की कि उनकी जो मन में क्यूरियोसिटी होती है, कुछ डाउट होते हैं, उनको क्लियर करने की। और मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई है आज, कि इन फ्यूचर के लिए बहुत सारे मेंबर हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक आई ओपनर का काम किया है आपने, कि इस फील्ड में एक अच्छा स्कोप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। पूरी सीआईआरसी की तरफ से मैं सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ज्वाइन किया है। हम रेगुलर इस तरह की कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे। आपको लगता है कि इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है सुझाव कि हमको ये टॉपिक पे और लेना चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, हमारी पूरी सीआईआरसी टीम को मैसेज कर सकते हो। हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि मेंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग हो सके किसी ना किसी रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मानवी मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी आज का पूरा सेशन मॉडरेट किया है, अच्छी तरह से उन्होंने कोशिश की है। बहुत अच्छा लगता है कि सर नए मेंबर या नए स्पीकर या मॉडरेट जो मेंबर्स आते हैं, हम तो चाहते हैं कि नए मेंबर आए इस फील्ड में, कि एज ए स्पीकर भी डेवलप हो पाए और एज ए मॉडरेटर भी डेवलप हो पाए। इससे अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है और एक लीडरशिप भी डेवलप होती है। तो मैं कोशिश करूंगा सीआईआरसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, आप सब लोगों के सहयोग के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। थैंक थैंक यू यू सो मच, हाँ थैंक यू सर। फॉर, थैंक यू। ओके सर। आंखों में नई रोशनी और दिल में कुछ नए अरमान लेकर आज हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ वेरी पेशेंट लिसनर, फॉर पार्टिसिपेटिंग हियर। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।